Hello, all of you. Welcome to lecture number 15 on magnetostatics. This is going to be a very, very important chapter. Not a very complicated one, but a very elegant and a simple one. Now, अब मैं इसको कैसे डील करने वाला हूँ? How are we going to be learning about this chapter? So the idea is basic. I am not going to be, I'm not going to develop this in a completely foundational manner. तो मैं बहुत ज़्यादा philosophical नहीं होऊंगा इसके बारे में. मैं इसके बारे में तुम्हें बहुत ज़्यादा I won't try to motivate the definitions to the maximum possible extent. Like I'm not going to be giving you every single explanation to the fullest. वो मैं नहीं करने वाला हूँ. And the reason for that is very simple because इससे जो exam में questions आते हैं they are more towards the application side of the formulas than towards the foundational aspect of the questions, right? So the reason, and I mean the reason for that is because you are eventually going to learn this once again when you get into your undergraduate program, whether you do a course on electrodynamics or whether you do a course on relativity, you will come across things like these, and then you study this once again. And when you are studying this over there, you should ask questions like why is magnetic field defined the way it is, what exactly why exactly is the force law the way it is, right? Lorentz force law, which we'll be studying eventually, है ना? So the idea is कि ये जो पूरा discussion होगा, ये discussion ये सोच के रखे, ये दिमाग में रखते हुए होगा कि जो हमारा पूरा कहानी है, ये कहानी एग्जाम में भी हेल्पफुल हो, एंड एट द सेम टाइम ये कहानी एग्जाम में भी हेल्पफुल हो, एंड एट द सेम टाइम जब हम इससे डील करने के लिए बाद में लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू डील विद दिस, यू शुड ऑल्सो नो कि बेसिक्स जो तुम्हारे एग्जाम वाले हैं, जो फॉर्मूलाज है वो तुम्हें पता होगा, तो यू कैन अप्रोच द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑन योर ओन एज वेल, अगर तुम्हें ज़्यादा ही इंटरेस्ट है तो. ऑल्दो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट बिकॉज अब एग्जाम एक महीने भी दूर नहीं है, 30 दिन भी नहीं बचे हैं, तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट. बट अगर कर सको तो कर लेता, मतलब या अगेन मे बी नॉट, बट यू गेट दी आइडिया, राइट? समझ ना मेरी बात? मैं बोला अगर किया हुआ है तो कर लेना, नहीं मन है तो मत करना. बट बट दिस इज अ वेरी रिच कॉन्सेप्चुअल चैप्टर जिसको मैं unfortunately I won't be able to deal with all of it immediately, है ना? Unfortunately I won't be able to deal with all of that immediately, but hopefully I would want to deal with all of it immediately. What do I mean by that? What do I mean by that? What I mean by that is the following कि मतलब I would actually love to tell you कि इस रीजन से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, इस तरीके से मुझे मिलता है, लेकिन एक तो लेक्चर 4 घंटे 5 घंटे का हो जाएगा, दूसरा ये होगा कि इसमें क्वेश्चन मैं फिर थोड़े कम करा पाऊंगा, या मतलब जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट है जो तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरत है वो थोड़ा कम हो जाएगा. तो मेरे को बहुत मन है वो बताने का, बट मैं नहीं बता रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ, मैंने ये लाइक एंड या सो I hope it helps you out in some way. So yeah, without wasting any time, let's just start. आज के क्लास में I have written it on the board, हाथ से लिख के मैं प्रिपेयर करके लाऊं स्लाइड्स. The reason for this is again the same. दो रीजन है इसके. एक तो रीजन ये है कि ये रिजल्ट जो है तुम्हें, it was difficult to actually get this properly explained in a textbook जो कि मैं सीधे कॉपी कर सकता था, तो वो मुझे एक तो नहीं मिला. I could not get proper slides for this. And the second reason was कि I think when I was doing this, that is when I realized कि the best way to go about this is using is basically doing the questions and explaining a lot of questions to you, showing what the formula is instead of showing what the formula, why the formula is what it is, right? So थोड़ा सा मजा आएगा तुम्हें, और ये एक चिल लेक्चर होगा. लाइक इट वोंट बी एज लोडेड एज सेव वर्क एनर्जी पावर वाला लेक्चर हो गया, रोटेशन हो गया. उतना ज़्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेट या कॉन्वोल्यूटेड नहीं रख रहा हूँ. आई एम कीपिंग इट सिंपल, मोर अलॉन्ग द ट्रेडिशनल लाइन्स ऑफ टीचिंग जो कि तुम्हें मिलेगा, एंड होपफुल इट हेल्प्स. सो लेट्स सी, है ना? ऑब्वियसली आई मीन ऐसा नहीं होगा कि मैं बिल्कुल ही कुछ एक्स्ट्रा नहीं जा रहा, बट हाँ इट इज़ गोइंग टू बी टू एन एक्सटेंट जहाँ पे एग्जाम में फायदा हो. बिकॉज आई रियलाइज कि आई नो कि पूरा सिलेबस होना में इस हफ्ते में लाइक वील बी डन विद ऑलमोस्ट द एंटायर सिलेबस. maybe a few more days. By 10th of May we'll be done with everything, right? जो भी तुम्हारा इसका सिलेबस का है, तो it's not a lot of days, it's not a lot of chapters that are left. So the hope is कि जो भी मैं यहाँ पे तुम्हें कराऊंगा उससे तुम्हें एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प मिल जाए to whatever extent you can. ठीक है? तो and obviously right, ये चैप्टर एक स्टैंडअलोन चैप्टर, this is not going to be continued if after this to any chapter, right? So that is another reason why we can actually relax a bit and take it from an examination perspective. But Newton's law में मैं वो नहीं करूँगा because Newton's law तुम्हारा हर चैप्टर में आता है, तो understanding is important in my opinion. Okay, enough of the rant. Now let's come back to this. So first law is Biot-Savart's law. It's the correct pronunciation is Biot-Savart's law. What does this law tell you? This law tells you the following. I give you a magnetic field, है ना? I give you a wire, sorry, not a magnetic field. I give you, I mean the law gives me how to calculate magnetic field into a current carrying wire at a random point. ठीक है? This is what this tells me. So I'm given a wire like this जिसमें current I travel कर रहा है. Now I go and I select a random small length over here, right? जो DL length है ना, I select this DL length यहाँ पे. Now when I select this DL length है ना, when I select this DL length है ना,
व्हेन आई सिलेक्ट दिस डीएल लेंथ, ओके लेट बी, हाँ, सो व्हेन आई सिलेक्ट दिस डीएल लेंथ, यहाँ पे ये छोटे से डीएल लेंथ की वजह से यहाँ पे कितना मेरा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा उसको मैं बोल रहा हूँ डीबी, ठीक है। सो डीबी इज इनफैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल डीएल लेंथ से थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे एक डीबी बनना, बहुत बढ़िया। सिमिलरली यहाँ वाले डीएल, हाँ क्या क्यों क्यों हाँ क्यों परेशान करता है ये मेरे को, यहाँ वाले डीएल से भी तुम्हारा एक ऐसा बनेगा, फिर यहाँ वाले डीएल से भी तुम्हारा ऐसा बन रहा होगा, यहाँ वाले डीएल से भी ऐसा बन रहा होगा, राइट। सो ये सारे के सारे जितने भी तुम्हें यहाँ पे डीएल दिख रहे हैं सबके सब डीएल जो है, अब देखो व्हाई एम आई डूइंग दिस इंटीग्रल, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स लाइक यू नो मेरे पास बहुत सारे डीएल्स है, मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो मुझे हर एक एलिमेंट से लेना पड़ेगा, राइट। सो बिकॉज ऑफ ईच ऑफ दीज इंडिविजुअल डीएस आई एम गोइंग टू गेट अ मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर व्हिच आई एम कॉलिंग डीबी। अब वो डीबी कैसे मिलेगा, एक बार मुझे वो डीबी मिल गया तो आई ब्रेक इट इनटू एक्स एंड ब्रेक इट इनटू वाई एंड जेड एंड आई सिंपली इंटीग्रेट, राइट। एक बार मुझे वो मिल गया तो आई कैन डू दैट, राइट। एक बार मुझे मिल गया कि वो कितना है तो आई कैन सिंपली ब्रेक इट इनटू एक्स, ब्रेक इट इनटू वाई एंड इंटीग्रेट, राइट। बट अगर मुझे वो मान लो नहीं मिला हुआ है देन आई कांट, राइट। तो मतलब मुझे पहले डीबी निकालना होगा, आई ब्रेक इट इनटू एक्स, आई ब्रेक इट इनटू वाई, आई इंटीग्रेट द एक्स1, आई इंटीग्रेट द वाई1 एंड आई गेट द एंटायर थिंग। एंड आई हैव क्वेश्चन, मतलब वी विल सी ये होता है, इसके थ्रू हम रिजल्ट्स भी देखेंगे। इट इज ईजियर टू डू दैट इंटीग्रेशन इफ से द वायर इज अ स्ट्रेट वायर or the wire is basically a circle, then it's an easy integration to perform, otherwise it will be complicated, otherwise it will take some time. So yeah, anyways, so dB इतना है, कितना dB, तुम्हारे dB का फॉर्मूला ये रहता है, मैग्नीट्यूड कितना होगा mu naught by 4 pi, again why am I writing it as mu naught by 4 pi, the reason for writing this as mu naught by 4 pi is because eventually you would want to convert this into an analog of Gauss's law, जो कि तुम्हारा एम्पियर सर्कुलर लॉ होने वाला है, वहां पे you just don't want 4 pi to be there, you just want mu naught to be there। तो क्योंकि वहां पे मुझे एक छोटा सा, मतलब वहां पे मुझे एक अच्छा कांस्टेंट चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे अपने कांस्टेंट को बिगाड़ देता हूँ, जस्ट लाइक k becomes 1 by 4 pi epsilon naught, क्योंकि मुझे गॉस लॉ में ओनली q by epsilon naught चाहिए, वहां पे 4 pi epsilon naught नहीं चाहिए, सिर्फ epsilon naught चाहिए, राइट। तो वहां पे क्योंकि मुझे सिर्फ epsilon naught चाहिए, q by epsilon naught, मैं epsilon naught डाल देता हूँ और k को बिगाड़ देता हूँ, यहाँ पे मुझे, वहां पे मुझे सिर्फ म्यू चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे म्यू बाई 4 पाई डाल देता हूँ, बहुत बढ़िया, यहाँ पे मैं बिगाड़ देता हूँ। सो ओके, बिगाड़ना क्या है मतलब, फाइन। सो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 10 to the power -7 होता है SI यूनिट्स में। आई एम नॉट राइटिंग SI यूनिट्स बिकॉज मुझे नहीं करना है यार, मुझे टेस्ला मीटर स्क्वायर वो सब नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डू दैट, बट इफ यू वांट मी टू राइट द SI यूनिट्स लेट मी राइट दिस डाउन। तो कितना हो जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर आएगा बिकॉज डीएल का 1 मीटर रह जाएगा, एंड डिवाइडेड पर एम्पियर। टेस्ला जो है तुम्हारा वो कैसे रहेगा, कैलकुलेट होगा, टेस्ला कैसे कैलकुलेट होगा, टेस्ला कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया, वो तुम वेबर वगैरह के टर्म्स में इसको लिख सकते हो, जो कि हम बाद में व्हेन वी डिस्कस फ्लक्स एंड ऑल वी विल हैव अ लुक एट दैट, बट हाँ यू कैन डू दैट। अब यूनिट टेस्ला इज द SI यूनिट, सो इट वर्क्स। एनीवेज, सो फॉरगेट द यूनिट्स पार्ट, वो तुम बाद में देख सकते हो, यूनिट्स एंड डायमेंशन में वैसे भी तुमने वो देखा ही हुआ है। लेट मी टॉक ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टफ, है ना, लेट मी टॉक ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टफ व्हिच इज दिस, कि अगर मैं डीएल एलिमेंट लेता हूँ इन द डायरेक्शन, आई ऑलवेज टेक डीएल एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज टेक डीएल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि तुम्हें अपने करंट का जो डायरेक्शन रहेगा वही तुम्हें बस यूज करना है, तो डीएल का डायरेक्शन तुम उल्टा भी ले सकते थे, यू टेक इट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, देखो आई ऐसे जा रहा है, आई ध्यान से देखो, आई ऐसे जा रहा है, मैं हट रहा हूँ सामने से, चलो कैसे बताऊँ, हाँ आई ऐसे आ रहा है, नहीं यही सही है यार, आई ऐसे जा रहा है, तो मेरी फिंगर्स यहाँ पे कैसे कॉल हो रही है, ऐसे बाहर की तरफ, राइट, मेरी फिंगर यहाँ पे बाहर की तरफ आ रही है, राइट, आई ऐसे तो मेरी फिंगर बाहर की तरफ आ रही है, सो दिस इज द आइडिया, ठीक है, दिस इज द आइडिया, मेरी फिंगर जितना कॉल करती है वो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। एक और तरीके से क्या होता है कि डीएल लो और आर की तरफ कॉल करोगे तो थंब की तरफ पॉइंट कर रहा है, डीएल लो आर की तरफ कॉल करोगे तो थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स ना, हाँ है ना, तो इसलिए वो आउटवर्ड्स है, ठीक है। सो ईदर वेज यू गेट द सेम आइडिया, सो वेक्टर फॉर्म इज गोइंग टू बी दिस, है ना, और क्योंकि यहाँ पे मेरा आर स्क्वायर था और यहाँ पे मैंने एक आर डाल दिया, तो मुझे डिनोमीटर में उसको यूनिट वेक्टर लेने के लिए आर से डिवाइड करना पड़ेगा, सेम चीज जो कि तुम वहाँ पे भी करते हो, एंड व्हेन यू डू दैट यू गेट दिस नाइस लॉ, ठीक है। सो दिस इज योर डीबी एंड आर, एक आर से एक आर स्क्वायर कट जाएगा, एंड दिस इज एक्जैक्टली द सेम एज दिस थिंग। सो तुम्हें डायरेक्शन मालूम पड़ के कैसे लेना है, ये वाला कर्ल करो इन द, मेक योर फिंगर्स गो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, curl your fingers, when you curl your fingers the fingers will actually at that point यहाँ पे होगा तो अंदर जा रहा होगा, यहाँ पे होगा तो नीचे जा रहा होगा, यहाँ पे ऊपर आ रहा होगा, यहाँ पे ऐसा आ रहा होगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, मतलब यू गेट, आई होप यू गेट द आइडिया, राइट, वो पूरा ऐसे कर्ल कर जाएगा, है ना, पूरा ऐसे कर्ल कर जाएगा, अमेजिंग। तो ये रहा उसका एक अच्छा सा पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन, है ना, ये रहा उसका एक अच्छा सा पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन, है ना, ये रहा उसका एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन, ये सुनो कैसा है ये पिक्टोरियल, ध्यान से देखो, तुम्हारा बी का डायरेक्शन ये होता है, तुम्हारा डीएल ऐसे जा रहा है, आर ऐसे जा रहा है, बी बाहर है, करके देखो डीएल क्रॉस आर, बी बाहर आया, डीएल क्रॉस आर, बी अंदर गया, तो अंदर है बाहर है, एंड यू हैव द आइडिया, है ना।
यू हैव द आइडिया। इसका एक एप्लीकेशन है सिंपल सा, वो क्या है, वो रहता है तुम्हारा स्ट्रेट वायर। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट आई एम गिविंग यू। पहला फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला है। स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारे पास एक वायर है जो इस तरीके से जाया जा रहा है ऊपर, इससे डिस्टेंस तुम्हारा d। मैं इसकी लेंथ स्पेसिफाई नहीं कर बिकॉज मैंने एंगल स्पेसिफाई करे, तो ऑटोमेटिकली तुम यू कैन डू this into d tan theta, d tan phi1, d tan phi2, and then you'll get this length and this length, and then that gives you the length of the entire thing. So it's implicitly given, not explicitly, but anyways the point is यहाँ पे हो क्या रहा है, this is the formula for the magnetic field. It is mu naught I by 4 pi d sin phi1 minus sin phi2 into the plane of paper. क्योंकि तुम्हारा करंट ऊपर जा रहा है, आई कर्ल माय फिंगर, देखो यहाँ पे अंदर जा रहा था, इधर पे क्या होगा, इधर पे ये बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे इट विल बी लाइक दिस, समझो, यहाँ पे भी अंदर, यहाँ पे भी बाहर, तो राइट और लेफ्ट से भी फर्क पड़ जाता है, ठीक है, राइट और लेफ्ट से भी फर्क पड़ जाता है। तो बेसिकली यूज दिस विद द मैग्नीट्यूड पार्ट ओनली, डायरेक्शन का पार्ट यू कैन ऑलवेज डू इट मैनुअली खुद से, है ना, डायरेक्शन का पार्ट यू कैन ऑलवेज डू इट खुद से, यस और नो, सही है बात, है ना, सही बात है। चलो तो अब यहाँ पे द आइडियाज की एक चीज का हमें ख्याल रखना है, एंगल्स कैसे लेना है। मैंने एंगल यहाँ पे देखो डायरेक्शन के साथ मार्क किया, राइट, ये एरो ऐसा है, ये एरो ऐसे जा रहा है, बिकॉज आई एम टेकिंग φ1 एज पॉजिटिव एंड आई एम टेकिंग φ2 एज नेगेटिव। व्हेन आई टेक φ2 एज नेगेटिव देन आई गेट sin φ2। तो अगर मान लो मेरा, है ना, तो एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल में ये आने वाला है मुझे यहाँ पे +60 डिग्री एंड -30 डिग्री आने वाला है, राइट, मुझे +60 डिग्री एंड -30 डिग्री आने वाला है ना। तो यहाँ पे मैं -30 डालूंगा, तो एक तरीके से तुम ये रियलाइज करोगे, अच्छा -30 का माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यस, बट दैट्स नॉट ऑलवेज वैलिड। फॉर एग्जाम्पल मान लो, है ना, आई होप ये सभी को समझ में आ रहा है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल पहले देखते हैं, उसके बाद हम आएंगे एक दूसरे एग्जाम्पल पे जहाँ पे वो सीधा रिजल्ट काम नहीं करेगा। तो ये एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट यू टू नाउ ट्राई दिस। अच्छा, इससे पहले कि मैं तुम्हें दिखाऊं, व्हाट आई डू इज कि मेरे पास, क्योंकि ये ऑलरेडी पीडीएफ है, मतलब मेरे पास ये ऑलरेडी नोट्स है, तो आई ट्राई टू ऐड द क्वेश्चन ओवर हियर एंड देन आई ट्राई टू आस्क यू टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, एंड देन वील हैव अ डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज दिस, आई ऐसे जा रहा है, आई ऐसे जा रहा है, आई ऐसे जा रहा है, एंड दिस इज अ स्क्वायर साइड ए, स्क्वायर ऑफ साइड ए, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, है ना, एंड यू हैव टू टेल मी कि इस सेंट्रोइड पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। This is the centroid and you have to tell me what the magnetic field is. So this is the question, है ना, this is the question। ये तुम्हारा स्क्वायर है, साइड ए है, तुम्हें बताना है सेंट्रोइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, राइट, दिस इज द साइड एंड द साइड, लेट्स टेक द साइड टू बी 2 है, लेट्स टेक द साइड टू बी 2 है। So you have to try this question, you can pause the lecture right now and you can try and do this on your own and then you can come back and have a look at the solution which I am presenting right now. Great, so here comes the solution is very simple। तुम्हारे पास ऐसे वायर है, मैंने इस वायर को, स्क्वायर को मैंने 4 पार्ट्स में तोड़ दिया, 1 2 3 एंड 4। जैसे मैंने इसको 1 2 3 एंड 4 में तोड़ दिया, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी b1 + b2 + b3 + b4 होगी। एंड आई वांटेड टू रियलाइज कि सभी की फील्ड्स का सेम डायरेक्शन, देखो बाहर 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 बाहर, सभी का सेम डायरेक्शन, राइट, बाहर 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 बाहर, राइट, बाहर आ रहा है, देखो घूम कैसे आ रहा है, राइट, सो ऐसा देखो घूम कैसे आ रहा है, बाहर बाहर बाहर। सो सभी का एक ही डायरेक्शन है, सभी ऐड हो जाएंगे, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, और इस सभी के सभी सिमेट्री की वजह से सेम भी रहेंगे, राइट, b1 b2 b3 b4 इक्वल रहेंगे, एंड वो मान लो b के बराबर, तो 4 गुना टाइम्स दिस, और डायरेक्शन ऑब्वियसली बाहर की तरफ था, राइट, तो इसलिए डॉट डाला। व्हेन यू पुट अ क्रॉस लाइक दिस, इट मींस कि वो तुम्हारा तीर कभी छोड़ोगे ना और सामने से तीर आ रही है, तो तुम्हें एक सर्कल और एक डॉट दिखेगा, लेकिन अगर तुम पीछे से देखोगे, अंदर जाते हुए, तुमसे दूर जाते हुए, तो तुम्हें ऐसे क्रॉस दिख रहा होगा, राइट। सो दैट इज वेयर दिस नोटेशन कम्स फ्रॉम, ठीक है, दिस इज हेड या टेल ऑफ एन एरो बेसिकली। तो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा b1 b2 b3 इक्वल है, और एक का मैग्नीट्यूड ये रहेगा, ये कैसे आया, ये आया इधर से, तो एक साइड पकड़ लो, जैसे तुम एक साइड पकड़ लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा। देखो एक बात बताओ, ये 2 है, तो तुम्हारा ये डिस्टेंस कितना होने वाला है, ये डिस्टेंस ए होने वाला है, ये डिस्टेंस कितना होने वाला है, ये भी ए होने वाला है, ये डिस्टेंस कितना होने वाला है, ये भी ए होने वाला है, और ये डिस्टेंस कितना होने वाला है, ये भी ए होने वाला है, राइट, चारों तरफ से ए ही ए होने वाला है, राइट। तो ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, क्योंकि पूरा 2a था, तो तुम्हारा ये और ये 90 डिग्री, ये 45 बन जाएगा, 45 बन गया, बहुत बढ़िया। लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे क्या बोला था, एक नेगेटिव है, एक दूसरा पॉजिटिव है, इसीलिए ये -45 और ये +45 लेना होगा, हाँ ना, मतलब -45 +45, बिकॉज एक के लिए तुम ऊपर जा रहे हो, दूसरे के तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, इसलिए तुमको अलग अलग लेना पड़ेगा साइंस। ओके, अगर तुम वो करते हो तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, sin φ1 माइनस sin φ2 माइनस φ2 के तुम डालोगे -π/4, माइनस माइनस गया, 2/√2 आ गया, 2/√2 आ गया, यहाँ से एक 2 और एक 2 गया, तो 2√2 आ गया, अति सुंदर। तो ये एक का था, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो न्यूमरेटर में एक √2 आ गया, बिकॉज 4 इज व्हाट, 2√2 टाइम्स √2, राइट। सो यू कैन सी दिस कैलकुलेशन एंड दैट्स द आंसर, सिंपल एलिगेंट, कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने बेसिकली चारों का इंडिविजुअली लेके ऐड कर दूंगा, चारों सिमेट्रिक है, तो एक को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसका कैसे मिलेगा, ये रहा तुम्हारा उसका आंसर, 45 ऊपर 45 नीचे 45, ये you just take this, you add 45 sin 45, you get 2√2 which is √2 basically, and divided by mu naught I by 4 pi a, because that was the formula that I written over here, so यही basically use कर रहे हैं।
तो दिस इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड प्लस एंड माइनस, बट देखो सही है. सो दिस इज द आइडिया, दिस इज द आइडिया एंड दिस इज अ गुड आइडिया. बट बिफोर आई गो हेड, आई वांट यू टू ट्राई अनदर प्रॉब्लम. आई वांट यू टू ट्राई अनदर प्रॉब्लम. व्हाट इज गोइंग टू बी दिस प्रॉब्लम? सो दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू इन्वॉल्व द फॉलोइंग केस. यहाँ पे देखो, इन दिस केस आई वांट यू टू रियलाइज कि तुम दोनों को ऐसे जा रहे हो, यहाँ से भी तुम 30 इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, 60 भी तुम सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, एंड दैट इज व्हाई योर साइंस आर गोइंग टू बी ऑफ द सेम साइन. मतलब या द साइंस आर गोइंग टू बी सेम बेसिकली. 30 भी तुम ऐसे गए ना और 60 भी तुम ऐसे गए, राइट. 30 ऐसे गए और 60 ऐसे गए, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हो. वहां पे तुम अगर मान लो ऑन दी अदर हैंड अगर तुम मैंने ये लिया होता, मान लो यहाँ पे लिया होता, तो तुम्हें 30 ये ऐसे लेना होता और ये ऐसे लेना होता, तो थोड़ा अलग आ जाता. आई होप आई एम मेकिंग सेंस, राइट. अगर मान लो मैंने ये ऐसे लिया होता और ऐसे लिया होता, इस पॉइंट पे निकालने जाता मैं, यहाँ पे जाता, तो फिर मुझे माइनस लेना पड़ता, प्लस लेना पड़ता, बिकॉज नीचे वाले के लिए मैं नीचे आ रहा हूँ, तो ऊपर वाले के लिए मैं ऊपर जा रहा होता. क्योंकि यहाँ पे दोनों एंड्स के लिए मेरे को ऊपर ही जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए मुझे एक भी पहला वाला +30, दूसरा वाला +60 लेना होगा. So basically put that number in. When you put that number in, you basically, and again the direction is what? Direction is into the plane of paper. देख लो, हाँ है ना? Direction is into the plane of paper, right? Because मैं curl ऐसे finger करूँगा, मेरी finger ऐसे जा रही है अंदर है ना? So done, basically done. Simple है, simple सा है. यहाँ पे तुम्हारा direction उल्टा था, इसलिए ये बाहर आ रहा है, ये ध्यान रखना. बाहर इसीलिए आ रहा है क्योंकि उल्टा डायरेक्शन है, नीचे की तरफ था ना, इसलिए बाहर आ रहा है, राइट. इट्स डिफिकल्ट टू शो दिस, बट यू गेट द आइडिया, राइट. ऐसा कुछ बाहर आ रहा है, देखो नीचे की तरफ थम गया तो ये बाहर आया, ठीक है. उधर पे मैं देखता हूँ क्योंकि उधर पे कैमरा का रिकॉर्डिंग दिखता है, तो आई कैन नो कि तुम्हें कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना. तो अगर मैं कभी ऐसे देख रहा हूँ तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे कैमरा का रिकॉर्डिंग आ रहा है, तो दैट इज़ वाई आई लुक इन दैट डायरेक्शन. एनीवेज चलो अगला सवाल देखते हैं. तो ये सवाल कराने से, चलो ये सवाल कराने से पहले आई वांट यू टू, आई विल गिव यू द क्वेश्चन एंड देन you'll try this on your own, pause the video and then we'll discuss this, है ना. we'll discuss it after that. So तुम्हारे पास इस तरीके से एक इन्फिनिट वायर है. ये कैसा वायर है? ये एक इन्फिनिट वायर है. इन्फिनिट वायर का ब्यूटी क्या होगा? एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज हाँ यहाँ पे ये इन्फिनिट वायर है, इसको मैं साइड कर दे रहा हूँ. यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसा एक इन्फिनिट वायर है. अब ये जो इन्फिनिट वायर है तुम्हारा, इसका यहाँ से एंगल कितना है? 45 डिग्रीज या 45 डिग्रीज मान लेते हैं, और तुम्हारा यहाँ से 90 डिग्री हो ऐसे, और यहाँ से तुम्हारा ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है d, ये 90 डिग्री है ना. ये डिस्टेंस है d, और यहाँ पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कितना है? यहाँ पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और तुम्हारा करंट जो वो ऐसे जा रहा है I, तुम्हारा करंट जो वो ऐसे जा रहा है I, ठीक है. तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना है? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना है तुम्हें ये निकालना है. सो दिस इज द क्वेश्चन एंड आई वांट यू टू टेक सम टाइम एंड आई वांट यू टू सॉल्व दिस, है ना. बिफोर आई गो हेड एंड सॉल्व दिस ऑन माय ओन, आई वांट यू टू टेक अ फ्यू सेकंड्स एंड सॉल्व दिस, ठीक है. तो अब देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है. इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है. क्या है? तुम्हें यहाँ पे तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि मुझे कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व अगर करना है तो मुझे उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है. दिस इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हाउ डू आई गेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? सो आई गेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन द फॉलोइंग फैशन, राइट. इसी पे दिखा देता हूँ. आई गेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय एक्सटेंडिंग दिस लाइक दिस, एंड मैं यहाँ से एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा. समझो मेरी बात. ऐसा ऐसे मिलेगा, ये 90 डिग्री ऐसे मिल रहा होगा, ये 90 डिग्री ऐसे मिल रहा होगा, राइट. ये 90 डिग्री ऐसे मिल रहा होगा, ठीक है. 90 डिग्री ऐसे मिल रहा होगा. तो करंट इस तरीके से जा रहा है, तुम इसको इसी लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे और यहाँ से तुम ले लोगे. अगर ये D है, ये 45 है, ये 90 है, तो दिस विल आल्सो बी 45. अगर ये 45 है, 90 है, तो दिस विल आल्सो बी 45. ये D है तो यानी कि और ये इक्वल हो गया. इसको x मान लो, इसको x मान लो, तो x² 2x² इज इक्वल्स टू d², यानी कि x इज इक्वल्स टू d/√2, हाँ है ना. मिल गया तुम्हें x/√2, तो दैट इज योर डिस्टेंस, राइट. दैट इज योर डिस्टेंस. तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा बेसिकली? देखो अब यहाँ पे एक ध्यान रखना, यहाँ पे तुम्हारा एक एंगल ऐसे जा रहे हो, तुम 45 डिग्री पे जा रहे हो, राइट. इफ आई रोटेट दिस, व्हाट डू आई गेट? इफ आई रोटेट दिस, आई गेट समथिंग लाइक दिस ना. तुम्हारे d/√2 डिस्टेंस है यहाँ पे, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया. तुम्हारा एक एंगल ऐसे 45 डिग्री, दूसरा एंगल जाने के तुमको आगे तक जाना ही पड़ेगा, राइट, हमेशा. बिकॉज यू टेक समथिंग लाइक दिस, यू टेक लाइक दिस एंड यू एक्सटेंड दिस, तो तुम्हारा लाइन ऐसे एक्सटेंड होते जाएगा, और ये एंगल बड़ा ही होते जा रहा है. ये एंगल हमेशा बड़ा होते जा रहा है. तो अल्टीमेटली ये एंगल जो रहेगा ये 90 डिग्री पहुंच जाएगा. समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? तो d/2 है तुम्हारा, एंड विद दिस d/2 तुम 45 डिग्री गए और फिर उसके बाद 90 डिग्री चलेगा. तो एक तुम्हारा φ1 प्लस 90 हो गया और एक प्लस 45 हो गया. दोनों प्लस, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में था. ये समझ रहे हो मेरी बात? दोनों सेम डायरेक्शन में था, इससे दोनों प्लस. अगर ये अलग अलग डायरेक्शन में होता तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता, ठीक है. ठीक है, चलिए, सही है, मजा आया. आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हो. तो ये आई थिंक दीज 3 क्वेश्चंस आर आई एम
these questions I think are sufficient for like the things that we are interested in right now. I'll now move on to the idea of magnetic field due to an arc. ठीक है, I'll now discuss magnetic field due to an arc. अब ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क क्या होता है, अभी तक तुम देख रहे थे वायर्स का, स्ट्रेट वायर्स का तुम देख रहे थे. हमने बायो-सावर्ट्स लॉ पढ़ा हुआ था, राइट. हमने बायो-सावर्ट्स लॉ पढ़ा हुआ था. अगर मैं ऊपर जाऊं तो तुमने देखा था हमने बायो-सावर्ट्स लॉ पढ़ा, तो उसका पहला एग्जांपल था स्ट्रेट वायर. स्ट्रेट वायर के बाद हमने उससे कुछ क्वेश्चंस देखे. अब हम देखते हैं सेकंड वाला केस जो कि क्या है तुम्हारा, सेकंड वाला केस जो कि क्या है तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क. सेम लॉ, सबको सेम है, कोई अंतर नहीं है. Before that, I wanted to realize some basic elements of this. I am going to derive this. I am going to derive this, but before I derive this, I wanted to realize some basic elements इस पूरे setup का. I wanted to see some basic geometry over here. सबसे पहले तो तुम्हारा DL element क्या होगा, ये वाला DL element होगा, हाँ है ना. ये DL element होगा क्या, ये सुनो, क्या ये DL element होगा तुम्हारा, बिल्कुल हाँ 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 है ना, हाँ है ना, हाँ है ना. तो ये DL element होगा, बिल्कुल ये DL element होगा. अभी जो DL element है तुम्हारा, ये DL element का लेंथ कितना हो जाएगा, AD phi. A is the radius, A is the radius, डी फी, यहाँ से तुम फी एंगल गए, यहाँ से तुम फी एंगल आए. देखो यहाँ से शुरू कर रहे हो तुम फी गए हो और यहाँ पे तुम डी फी ले रहे हो. दिस इज योर डी फी, दिस इज योर फी. ठीक है, दिस इज योर फी एंड दिस इज योर डी फी. वो एक्चुअली में फाई नहीं होता, वो फी होता है. ठीक है, तो अगर तुम उसको फाई बुला देते तो गलत बुला रहे हो, इट इज फी. ओके, सो ये ए है, ये ए है, ये फी है, ये फी है और ये डी फी. और ये जो एंगल तुम्हारा पूरा एंगल है, पूरा एंगल थीटा है. तो व्हेन यू इंटीग्रेट यू आर ऑलवेज गोइंग टू टेक योर लिमिट फ्रॉम 0 to 90, like sorry 0 to theta, 0 to theta. Okay, now now do you realize कि when you were doing all of this, what was the formula for your Biot-Savart's law? Biot-Savart's law के formula में there was dl sin theta, where theta was the angle between d theta and r, right? हाँ ना, ये theta था ना, dl and r, sorry, dl and r, the angle between dl and r, right? That was theta. एंगल बिटवीन डीएल एंड आर. तो यहाँ पे भी तुम्हें डीएल और आर का निकालना होगा. तो डीएल क्या है वेक्टर तुम्हारा, ये वाला वेक्टर है डीएल. आर वेक्टर क्या है तुम्हारा, रेडियस वेक्टर है. डीएल इज लाइक अ टेंजेंट, है ना. सो डीएल इज लाइक द टेंजेंट एंड आर इज लाइक द रेडियस. यस और नो, डीएल इज लाइक द टेंजेंट, आर इज लाइक द रेडियस. तो अगर डीएल तुम्हारा टेंजेंट के जैसा है और आर तुम्हारा रेडियस के जैसा है, तो तुम्हारा टेंजेंट और रेडियस में बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री. तो इसलिए तुम्हारा एंगल बिटवीन डीएल एंड दिस इज 90 डिग्री. समझ में आ गया मेरा बात, समझ में आया मेरा बात. तो डीएल का लेंथ एडीफी है, तुम्हारा एंगल 90 डिग्री है. तो जब तुम इस वाले फॉर्मूला में ये डालोगे, अब यहाँ पे तुम्हें क्लैश नोटेशन दिखेगा कि यहाँ पे भी मैंने थीटा ले रखा है और मैंने इस एंगल ऑफ आर्क को भी थीटा ले रखा है. द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज वो थीटा नहीं, थीटा प्राइम या इसको कुछ और ले लो, है ना, अल्फा बीटा गामा जो लेना ले लो, तुम्हारी मर्जी, है ना. तो इफ आई वांट आई कैन एक्चुअली टेक दिस एज अल्फा, इफ आई वांट आई कैन एक्चुअली टेक दिस एज अल्फा एंड आई विल टेक दिस एज थीटा. ठीक है, सो ये अल्फा हो गया, ये थीटा हो गया. अच्छा, अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि तुम्हारा ये थीटा था, है ना, साइन थीटा था, तुमने पूरा सॉल्व वगैरह किया एंड यहाँ पे तुम्हारा ये डी फी था. यस और नो, डीएल वाज व्हाट, डीएल वाज डी फी ना. व्हाट वाज डीएल, डीएल वाज डी फी. यस और नो, डीएल वाज डी फी. तो तुम्हारा यहाँ से एक ए और ए डी फी, सॉरी, तो एक ए और एक ए गया, तुम्हें म्यू नॉट आई बाई 4 ए मिला एंड देन यहाँ पे तुम्हें ए मिल गया. एंड योर फी गोज फ्रॉम 0 टू अल्फा, बिकॉज ये रिसेंटली अभी मैंने चेंज किया था, तुमने देखा था, राइट. मैंने पहले थीटा लिखा था, बाद में चेंज इट टू अल्फा. So what will this become? This will also become the same thing, right? तो a by alpha कितना percentage of the ring लिया, वो times mu naught by 2a, है ना. तो अब यहाँ पे the question is what happens when alpha is pi by 4, what happens when alpha is pi by 2, what happens when alpha is pi, what happens when alpha is 2 pi, right? तो ये सारे alpha पे condition लगा के हम देखते हैं. तो ये क्या होगा तुम्हारा, this is a quarter का half ring, मतलब this is like 1/8 of a ring, right? This is a quarter ring, this is a semicircular ring, I mean yeah semi ring या जो भी है ना, and this is a full ring, right? अल्फा तो वही होता है ना, अल्फा इज द एंटायर एंगल जो ये आर्क सबटेंड कर रहा है द सेंटर, राइट. जो आर्क एंगल सबटेंड कर रहा है द सेंटर, वही होगा तुम्हारा अल्फा. तो अल्फा की चारों वैल्यूज के लिए तुम्हें ये निकालना है. दिस इज योर होमवर्क, ये मैंने ऑलरेडी करके तुम्हें दिखा दिया, बिकॉज ये ऑब्वियस है, यहाँ से 2 पाई कट जाएगा एंड दिस इज व्हाट यू विल हैव. डायरेक्शन कैसे मालूम पड़ेगा इसका, ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया ना. बिफोर आई मूव ऑन टू दिस, आई वांटेड टू डिस्कस सेमी इनफिनिट एंड सेमी फाइनाइट वायर्स. द रीजन आई एम डिस्कसिंग दिस इज बिकॉज इसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन देने वाला हूँ एक, जिस क्वेश्चन में ये यूज होगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में यूज होगा. तो आई वांटेड टू डिस्कस दिस. आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आ गई, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी तुम्हें समझ में आ गया एंड इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. ठीक है, आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए. तो दिस वाज थीटा एंड ये पूरा तुम्हारा डिस्कशन रहा. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस. सबसे पहले तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक इन्फिनिट वायर मैंने दे दिया है. अगर मैं तुम्हें एक ऐसा इन्फिनिट वायर दूँ तो तुम्हारा ये एंगल तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके ले रहे हो और ये वायर तुम पॉजिटिव जाके ले रहे हो. एक पीछे घुमाए, एक आगे घुमाए. जो तुम आगे घुमाए वो पाई बाई 2 है, जो तुम पीछे घुमाए माइनस पाई बाई 2 आया. यस और नो, है ना. एंड यू कैन सी कि तुम ये एंगल बड़ा करते हो तो ये एंगल बड़ा होता जाएगा, लाइन लेंथ बड़ा करोगे बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, एंड इवेंचुअली दिस विल बिकम 90 डिग्री. लिमिटिंग केस 90 डिग्री होगा. तो प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री फी 1 माइनस 90 डिग्री फी 2. तो व्हेन यू पुट दोस नंबर्स इन यू गेट साइन 90 डिग्रीज माइनस साइन माइनस 90 डिग्रीज, माइनस माइनस गया एंड यू गेट 1 ओवर हियर. सो 1 + 1 2 आया, 2 से 4 गया, 2 बच गया, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी मिल गया तुम्हें. बहुत सही फॉर्मूला है. अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है आगे चल के, बिकॉज दिस 2 पाई डी इज एक्चुअली द सर्कमफ्रेंस एट दिस लेंथ. अगर तुम यहाँ से डी डिस्टेंस पे जाके कैसे सर्कल ले लोगे,
अगर तुम वायर के डी डिस्टेंस पे जाके तुम ऐसे सर्कल ले लोगे एक, है ना, ऐसा सर्कल अगर एक ले लोगे तो ये सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस रहेगा, ये सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई डी, और इस पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे रहेगी, हमेशा ऐसे रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रही मेरी बात? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस तरीके से घूम रहेगी पूरे टाइम सर्कल पे ऐसा। तो डीएल अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ले लूं तो मेरा अगर मैं पाथ इंटीग्रल करूंगा तो मुझे क्या मिला, बी कांस्टेंट ही होने वाला है, राइट, डी पे तो बी कांस्टेंट होने वाला है, तो अगर मैं वो करूंगा, अगर मैं बी और डीएल ऐसे घुमा दूंगा तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी म्यू नॉट आई। सो दिस इज गोइंग टू बी योर एम्पियर सर्कुलर व्हिच आई विल कम टू इन अ व्हाइल, बट आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया। चलो अब एक सेमी इन्फिनिट वायर का देख लो। सेमी इन्फिनिट वायर में एक एंगल 0 होगा, दूसरा एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री हो गया प्लस π/2 हो गया, और एक एंगल तुम्हारा 0 का 0 रहेगा ना, ये 0 ही रह गया, तो ये 0 डिग्री हो गया, है ना। तो φ2 0 है, φ1 प्लस 90 डिग्री है, φ2 0 है, φ1 प्लस 90 डिग्रीज, और इससे क्या होगा, φ2 0 है, φ1 प्लस 90 डिग्री, तो इससे क्या होगा बताओ, इससे क्या होगा। सो इससे हमें जो होगा वो ये होगा, इससे होगा जो वो ये होगा, एक सेकेंड, हाँ, इससे जो होगा वो ये होगा कि तुम्हारा मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू साइन थीटा माइनस साइन 0, साइन बेसिकली वही फी पाई बाई 2 माइनस साइन 0, 1 आएगा 0 आएगा, बेसिकली दिस। सो दिस इज हाफ ऑफ योर फुल सर्कल बेसिक, सॉरी ऑफ एन इन्फिनिट वायर, राइट। सेमी इन्फिनिट वायर का जो है वो हाफ रहेगा ऑफ द इन्फिनिट वायर। ओके, now comes this question which I wanted to discuss, which I was giving you. I've already shown the answer, so please don't go back and look at the solution. I'll give the question once again, I'll draw the question for you, and I wanted to try this question. So तुम्हारे पास ऐसे वायर आ रहा है ना, एक सेमी इन्फिनिट वायर है, इसके ऊपर एक आर्क है सेमी सर्कुलर ऐसा, और यहाँ से तुम्हारे पास एक दूसरा वायर है ना, I'm asking you to calculate a magnetic field over here. इसका रेडियस है r, करंट पूरे में है I, ठीक है, एंड बस और कुछ नहीं, इसको कैपिटल R ले लेते हैं। सो हाउ मच इज गोइंग टू बी द आई, ऐसे गया आई ऐसे गया, इसके वजह से तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एट द सेंटर, ये ओ है इसका, इस पे ओ पे कितना तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा ये तुम्हें कैलकुलेट करना है विद द डायरेक्शन। तो अब ऑब्वियस ही बात है ये क्वेश्चन है, तो मैं आई वुड वांट यू टू ब्रेक दिस इनटू 3 कंपोनेंट्स, राइट। पॉज द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन ट्राई टू ब्रेक दिस एंड इंडिविजुअली तीनों का निकालो और मुझे बताओ क्या आने वाला है, ठीक है। इंडिविजुअली तीनों का निकालो और मुझे बताओ क्या आने वाला है। So the way to deal with this problem is very simple. You break this into 3 parts. First part, second part, third part. B1, B2, B3. How much is B1? You just derived this mu naught I by 4 pi r, and B2 is similarly going to be, ये देखो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये जो अल्फा हमने ले रखा था वो अल्फा कितना हो जाएगा हमारा अल्फा यहाँ पे बन जाएगा कितना, हमारा अल्फा कितना बन जाएगा, और अल्फा इज गोइंग टू बी पाई। सो इंस्टेड ऑफ 2 पाई इट्स गोइंग टू बी पाई, सो इट्स पाई बाई 2 पाई, पाई गया 1/2 आ गया, तो म्यू नॉट बाई 4 आर आ गया, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 आर आ गया, राइट, म्यू नॉट आई बाई 4 आर आ गया, राइट। सो ये रहा तुम्हारा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई और म्यू नॉट आई बाई 4 और यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, वाई, बिकॉज इफ आई एक्चुअली गो अलॉन्ग द लाइन देन यू रियलाइज कि तुम्हारा जो डी आर वेक्टर है और जो आर वेक्टर है वो पैरेलल है। देखो डी आर वेक्टर और आर वेक्टर पैरेलल है, यानी कि एक और तरीका इसको देखने का ये होगा कि φ1 और φ2 0 हो जाएगा, बिकॉज ये वाला भी 0 है और ये वाला भी 0 है, नॉट रोटेटिंग एनीथिंग, यू जस्ट लेटिंग इट बी लाइक दिस। तो 0 0 हो गया तो b 0 हो गया, तो इसकी वजह से 0, इसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये, ऐड देम अप एंड यू हैव योर आंसर, यू ऐड देम अप एंड यू हैव योर आंसर ओवर हियर, बेसिकली दिस। कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन है नहीं, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सो आई वांट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन, जहाँ पे तुम्हें एक ऐसा सर्कल दिया हुआ हूँ मैं, एंड इस सर्कल का मैंने बोला यहाँ पे, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर दे रहा हूँ। आई हैव गिवन यू अ सर्कल लाइक दिस, आई हैव गिवन यू अ सर्कल लाइक दिस, और यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ से हम जाएंगे इस तरीके से, और ये एंगल रहा तुम्हारा थीटा, है ना, तो ये एंगल तुम्हारा कितना हो गया 2 पाई माइनस थीटा, एंड यहाँ से तुम्हारा करंट I आ रहा है जो कि यहाँ पे आ जा रहा है I1 और यहाँ पे चले जा रहा है I2 और वापस से मिलके I आ जा रहा है। अब तुमको इस पॉइंट पे यहाँ पे तुम्हारा अपना मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और तुम्हें पता नहीं मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। द आंसर इज वेरी सिंपल। हाउ डू यू डील विद दिस? द वे टू डील विद दिस इज सिंपल। तुम्हारा I1 और I2 है, शायद मैंने यहाँ पे उल्टा ड्रॉप लिख दिया है, ये I2 ले लो और वो I1 ले लो, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि मैं तुमको I1 I2 दे दिया हूँ, ये स्प्लिट हो रहा है इस तरीके से। नाउ यू नीड टू फाइंड व्हाट I1 इज व्हाट I2 इज, एंड वो कैसे मिलेगा तुम्हें, तो यू नाउ रियलाइज कि इसका लेंथ कितना है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, है ना, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। I इज 1/R के प्रोपोर्शनल, L के प्रोपोर्शनल, तो I इज 1/L के प्रोपोर्शनल, तो I1/I2 इज L2/L1 यहाँ, है ना, बिकॉज ऑफ द इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। व्हाट इज L2 R थीटा, व्हाट इज L1 R into this, so you get I1/I2 इतना आ गया, और I1/I2 I है, यहाँ से तुम्हें I1 मिल गया, यहाँ से तुम्हें I2 मिल गया। समझ में आया? सिंपल सा इक्वेशन है, what is I1 and what is I2। when you simplify that you're going to get I1 as this and I2 as this, ठीक है।
एक बार तुम्हें ये मिल गया, इसके बाद तुम्हें यहाँ पे ये रियलाइज होगा कि तुम्हारा यहाँ पे थीटा कितना है, 2 पाई माइनस थीटा, I1 करंट है, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2R। वही सेम जो आर्क का फॉर्मूला तो मैंने लगाया, 2 पाई माइनस थीटा बाई 2 पाई डाला, यहाँ पे ये मिल गया एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई मत करना, लेट इट बी लाइक दिस, बिकॉज व्हेन यू कम टू I2, है ना, व्हेन यू कम टू I2 थीटा रहेगा और यहाँ पे I2 रहेगा। I2 का वैल्यू तुमने यहाँ डिराइव कर रखा है, सब्स्टिट्यूट करो, I1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 पाई माइनस थीटा थीटा, 2 पाई माइनस थीटा थीटा, 2 पाई माइनस थीटा थीटा, माइनस साइन के साथ ये आएगा बिकॉज अब डायरेक्शंस पलट जाएंगे। इसका डायरेक्शन ऐसे अंदर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और इसका जो रहेगा वो अंदर के बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो एक अंदर एक बाहर, ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड कैंसिल आउट, एंड दिस बिकम्स जीरो। ठीक है, दिस बिकम्स जीरो। सो दिस इज हाउ यू डील विद दिस। नाउ कम्स द थर्ड बिट, थर्ड एग्जांपल, वेयर थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ, सो बायो-सावर्ट्स लॉ का थर्ड एप्लीकेशन इज ऑन ड्यू टू अ सर्कल एट अ पॉइंट x, है ना। अब अगेन इसका डेरिवेशन नॉट देयर, आई एम नॉट गोइंग टू बी डिस्कसिंग द डेरिवेशन ऑफ दिस बिकॉज आई डोंट थिंक डेरिवेशन से एग्जाम में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इसमें कोई वेरिएबल डेंसिटी वगैरह भी नहीं आता, तो आई डोंट थिंक डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट एंड यू कैन स्किप डेरिवेशन सेफली, राइट। बट अगेन अगर टाइम है और अगर इंटरेस्टेड हो, सर्टेनली गो अहेड एंड लुक एट इट। if physics is your strongest subject, then I would recommend you to do all that you can, है ना। तो definitely you can look at it if you want to। अब anyways the point is कि तुम्हारे पास ये सर्कल है, ये लूप है, यहाँ से तुम x डिस्टेंस दूर गए, तुम्हें वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब जैसे तुम x डिस्टेंस दूर जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे एक थीटा मिलने वाला है ना। ये थीटा यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो तुम इस थीटा के टर्म्स में भी डेरिवेशन अपनी देख सकते हो, या फिर तुम एक r और z के टर्म्स में भी, x के टर्म्स में भी देख सकते हो। एनीवेज द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी दिस, b इज गोइंग टू बी माइनस i हैट। माइनस आई हैट मतलब ये डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन आई हैट का, राइट। दिस डायरेक्शन इज आई हैट, एक्स एक्सिस, उसके ऑपोजिट एक्स एक्सिस की तरफ, ऑपोजिट एक्स एक्सिस की तरफ, राइट। रिवर्स डायरेक्शन के एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन के एक्स एक्सिस की तरफ तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, जा रहा है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा पीछे की तरफ जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स डिस्टेंस, मतलब है ना, एक्स पॉइंट पे, एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर कितना होने वाला है अलोंग द एक्सिस, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। फाइन, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अगेन वेरी सिमिलर टू व्हाट यू हैव इन योर इलेक्ट्रिक फील्ड, बट वहाँ पे तुम्हारा वो आता है, एक्स आता है, यहाँ पे आर स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर में ही एक्स का डिपेंडेंस है, न्यूमरेटर में नहीं है। हाउ डू यू रिमेंबर दिस? द वे टू रिमेंबर दिस इज द फॉलोइंग, यू रिमेंबर इफ एक्स इज एक्चुअली 0 देन यू हैव ऑलरेडी डिराइव्ड द फॉर्मूला, यस और नो, यू हैव ऑलरेडी डिराइव्ड द फॉर्मूला। एंड एक और चीज, ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह में सेम है, अलग नहीं हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ पोल मतलब ये जो एक्सिस है ना, इफ दिस साइड इज बिहेविंग एज साउथ पोल तो अंदर जाएगा, नॉर्थ पोल से बाहर आ जाएगा, तो सेम ही डायरेक्शन में कंटिन्यू करने वाला है, राइट। इट्स लाइक अगर मैं इधर से देखता हूँ तो मुझे साउथ दिखेगा, पर मैं पीछे जाके देखूँ तो मुझे नॉर्थ दिखेगा, तो अंदर आने वाली सामने चली जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आके वो कन्वर्ज करे, सो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरा x 0 आ जाए तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिल जाना चाहिए वही वाला जो फुल सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड था, राइट। म्यू नॉट आई बाई 2r, दैट इज व्हाट आई शुड गेट एट द सेंटर, राइट। म्यू नॉट आई बाई 2r, तो अब म्यू नॉट आई बाई 2r लेने के लिए मुझे यहाँ पे क्या फॉर्मूले में चाहिए, मुझे सबसे पहले तो चाहिए 2, और यहाँ पे 2 चाहिए, ऊपर में म्यू नॉट आई चाहिए, बहुत बढ़िया, म्यू नॉट आई बाई 2 मिल गया मुझे। अब यहाँ पे डू यू रियलाइज कि डिनोमिनेटर में, इवन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिनोमिनेटर में सेम चीज आई थी, तो सेम चीज यहाँ पे भी एज्यूम कर लो, मतलब ये आना ही आना है, ठीक है। दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर, तो ये आना ही आना है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 आना ही आना है। अब इसको कैंसिल करने के लिए x इक्वल्स 0, न्यूमरेटर में देयर शुड बी एन r स्क्वायर, हेंस देयर इज एन r स्क्वायर इन द न्यूमरेटर, एंड दैट्स द फॉर्मूला फॉर यू। सिंपल, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दिस इज बेसिकली व्हेन यू पुट x इक्वल्स 0 यू गेट द सेम फॉर्मूला, सो यू हैव द नाइस रिजल्ट। हाउ डू यू प्लॉट दिस? द प्लॉट इज गोइंग टू लुक समवॉट लाइक दिस। सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है। ध्यान से देखो, सारा का सारा है ना, तो लेट मी प्लॉट दिस एज माइनस मॉड b। Why am I plotting it as mod b? I am plotting it as mod b because again directions का मैं नहीं लेना चाहता, नेगेटिव पॉजिटिव मैं नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं mod b की तरफ प्लॉट कर रहा हूँ। Okay, so what is the maximum? So clearly when is this going to be maximum? This is going to be maximum when the denominator is minimum, because numerator तो constant है, तो denominator minimum कब होगा? When x is 0. So when x is 0, what is your this thing? This thing is basically r, right? So वही है basically mu naught I by 2r. So that's the maximum and this is the plot. It's like a bell sort of a plot, है ना? Not a bell shaped curve. ये वो नहीं है, तो मतलब ये गॉसियन नहीं है, बट इट्स लाइक गॉसियन अगेन। इफ द वर्ड इज इंटिमिडेटिंग, यू हैवंट डन एनफ मैथ्स, which upon practice you will be familiar. There is a particular graph which we call as Gaussian curve. ये वो कर्व नहीं है, ये वो कर्व नहीं है, ठीक है, ये वो कर्व नहीं है, बट आई होप यू गेट द आइडिया, ठीक है, आई होप यू गेट द आइडिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सो अगेन डायरेक्शन का एक और तरीका देखने का, मान लो तुम्हारे पास करंट इस तरीके से आ रहा है, टक 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 ऐसा करंट आया जा रहा है, और तुम्हारा एक दूसरा करंट टक 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 ऐसा, है ना, नॉर्थ ऐसा जा रहा है, साउथ ऐसा आ रहा है। अब होता क्या है कि अगर ये करंट है ना तुम्हारा, तो तुम देख सकते हो तुम्हारा यहाँ पे आई ऐसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा, तो तुम देख सकते हो तुम्हारा
हाउ डू आई शो दिस, तो ऐसे देखो आई ऐसे जा रहा है तो तुम्हारा अंदर जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे देख मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, ऐसे जा रहा है अंदर, देखो 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 ऐसे जा रहा है अंदर जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर, यहाँ पे भी अंदर है, यहाँ पे भी अंदर है, तो सारे डायरेक्शन में अंदर जा रहा है, तो दिस इज लाइक अ साउथ पोल, एंड इसी को मैंने लिखा है अगर तुम्हारा क्लॉकवाइज है तो यू राइट एन एस लाइक दिस, एंड यू कैन सी कि ऐसी सिर्फ एरो को मैच करा ना, यारो इससे मैच हो रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें मिल गया साउथ पोल, ग्रेट। और नॉर्थ पोल में क्या होगा, तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो यू गेट अ नॉर्थ पोल, क्योंकि उसमें तुम एन लिख सकते हो। सो दिस इज अ नाइस ट्रिक विच पीपल यूज टू रिमेंबर कि सर्कल्स में किस साइड में साउथ रहे, किस साइड में साउथ रहेगा, किस साइड में नॉर्थ रहेगा, ठीक है। सो यू कैन यूज द सेम ट्रिक एज वेल। एनीवेज नाउ कम्स द बिग लॉ, नाउ कम्स द लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है, बहुत अच्छा है। ये है तुम्हारा एम्पियर सर्किटल लॉ। व्हाट एग्जैक्टली इज एम्पियर सर्किटल लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ तुम्हारा जो आइडिया था ना, मैंने जिसकी बात की थी तुम्हारे, देखो डीएल और बी सेम डायरेक्शन में, क्या डीएल और बी सेम डायरेक्शन में, क्या देखो देखो बढ़िया, करंट ऐसे जा रहा है तो तुम्हारा ऐसे बी रोटेट कर रहा है, ऐसे गोल घूम रहा है ना, बी अलोंग द सर्कल जा रहा है, एंड सो इज योर डीएल, है ना, डीएल में उसी डायरेक्शन में लूंगा जो बी का डायरेक्शन है। तो अगर मैं वैसा ले लूं एंड देन आई रियलाइज कि अच्छा ग्रेट, देन एंड आई नो कि बी कांस्टेंट है इस सर्कल पे, तो व्हेन आई डू दिस बी डॉट डीएल इज बेसिकली बी टाइम्स डीएल, व्हेन आई डू दिस इंटीग्रल आई एम गोइंग टू गेट बी इनटू 2 पाई आर ना, है ना, या 2 पाई डी बेसिकली। सही बात है क्या, सही बात है क्या, सही बात है क्या, है ना, सही बात है क्या, सही बात है क्या, सही बात है क्या। देखो कैसे b डॉट डीएल है, b डॉट डीएल बन जाएगा बिकॉज सेम डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट इज रिप्लेस बाय cos 0 which is 1, so b डॉट डीएल इज b dl। ओके, now you integrate this over the full circle, so b dot dl है, when you integrate this over the full circle, this integral is actually equal to what, this is actually equal to what, this is equal to b dot dl का इंटीग्रल। now in b dot dl का इंटीग्रल में b बाहर आ जाएगा, जैसे b बाहर आ जाएगा क्या होगा, जैसे ही b बाहर आ जाएगा क्या होगा, यू विल बी लेफ्ट विद dl। अब dl का इंटीग्रल क्या आने वाला है, 2 पाई d आने वाला है, राइट, या 2 पाई r आने वाला है। तो ये जो रिजल्ट है तुम्हारा, दिस इज लाइक कि ये जो टर्म है ना, यही ये रिजल्ट है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड इज बेसिकली दिस, है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज बेसिकली दिस। आई होप दिस मेक्स सेंस, राइट, लेफ्ट हैंड साइड जो है तुम्हारा इस इक्वेशन में वो यही है, राइट, वो यही है b डॉट d, है ना। तो अगर मैं इधर पे आ जाऊं और मान लो मैंने तुम्हें एक रैंडम सा लूप दे दिया, अब ये रैंडम से लूप में क्या होगा, एंड आई होप यू नो कि इसमें होगा ये कि आई होप यू रियलाइज दिस, राइट, कि जिस तरीके से गॉसियन सरफेस के टाइम पे, गॉस लॉ के टाइम पे हमने क्या बोला था कि कोई सा भी सॉलिड एंगल में एक एंगल होगा जिसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या रहेगा, आर स्क्वायर इंटू डी ओमेगा, है ना। यहाँ पे हम करेंगे बट हम एंगल में करेंगे, तो मैं यहाँ से क्या लूंगा, मैं डी थीटा एंगल लूंगा, और मैं यहाँ पे बोलूंगा मान लो ये ए डिस्टेंस में मेरा तार है, राइट, मैं लूप या जो भी मैं तार लूँ या लूप लूँ, जो भी मैं लूँ, दैट इज एट अ डिस्टेंस ए। सो इफ दिस इज एट अ डिस्टेंस है तो यहाँ पे मेरा ये लेंथ कितना बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी डी थीटा इंटू ए। ओके, व्हाट इज माई बी क्या होगा, बिकॉज ऑफ एन इन्फिनिट वायर, बिकॉज ऑफ एन इन्फिनिट वायर मेरा बी क्या होगा, बिकॉज ऑफ एन इन्फिनिट वायर मेरा बी क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए रहने वाला है मेरा बी, है ना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए रहने वाला है मेरा बी, है ना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए रहने वाला है बी। अगर ऐसा है मेरा बी, अगर मेरा बी है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, है ना, और मेरा जो मेरा डीएल है दैट इज डी थीटा इंटू ए, तो इधर से मुझे मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा, मेरा ए और ए कैंसिल हो जाएगा। अगेन द पॉइंट इज कि तुम यू नो दिस इज गोइंग टू ओनली बी दी कंपोनेंट अलोंग बी, राइट, दिस इज गोइंग टू बी द सर्कुलर कंपोनेंट, राइट, टेंजेंशियल कंपोनेंट, है ना। डीएल वाज टेंजेंट जो हमने सर्कल वाले में भी देखा था, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ले रहा हूं। इफ यू डोंट लाइक दिस यू कैन इग्नोर दिस, डेरिवेशन इज एब्सोल्युटली नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट इवन इन द सिलेबस, आई एम जस्ट गिविंग दिस टू यू बिकॉज आई डिसाइडेड लाइक yeah, I don't want to sort of I want this to be there in your mind, so or at least an idea, vague idea of where this comes from to be there in your mind. So you do this integral, and when you do this integral you get mu naught I by d theta by 2 pi, ठीक है, mu naught I d theta by 2 pi, सही है, mu naught I d theta by 2 pi, सही है क्या, mu naught I d theta by 2 pi, यही रहेगा क्या, बिकॉज ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो d theta by 2 pi आएगा। व्हेन यू इंटीग्रेट दिस ओवर द फुल थिंग, यू इंटीग्रेटिंग ओवर 2 pi, पूरा एंगल है ना, फुल सर्कल का एंगल, सो ये 2 pi कैंसिल हो गया, एंड यू विल बी लेफ्ट विद व्हाट, mu naught I। समझ में आ गया, यस और नो, यू विल बी लेफ्ट विद mu naught I। क्लियर है ये, क्लियर है ये, यस और नो, है ना, यू विल बी लेफ्ट विद 2 pi। सही बात है क्या, यस और नो, यस और नो, जल्दी, डज दिस मेक सेंस, डज दिस मेक सेंस, है ना, डज दिस मेक सेंस। सो दिस इज व्हाट डी थीटा, अब ये जो व्हेन यू इंटीग्रेट दिस यू गेट 2 pi, एंड 2 pi 2 pi by 1 आ जाएगा, तो मतलब यू गेट दिस दैट दिस इज बेसिकली डी इज म्यू नॉट आई। तो द लॉ इज दिस, एंटी क्लॉकवाइज जो अगर तुम करंट का ऐसे सर्कल लेते हो, है ना,
तो तुम एंटी क्लॉकवाइज जो भी तुम्हारा डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव ट्रीट करें। तो देखो अब इसमें से होगा क्या, ये नेगेटिव करंट है, ये पॉजिटिव करंट है। अब क्यों मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, बिकॉज देखो आई वांट द जो भी करंट, जो भी डायरेक्शन का करंट अंदर हो या बाहर हो, जो भी करंट का डायरेक्शन है ये वाला हो या ये वाला हो, जो भी करंट मेरे को मेरी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस वायर दे देगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज प्लस, बिकॉज उसका जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा वो प्लस आएगा विद डीएल, राइट। तो बी डॉट डीएल जिसका प्लस आ जाए, जिसका भी बी डॉट डीएल प्लस आ जाए वो हम लेंगे पॉजिटिव, जो हमारा माइनस है हम लेंगे माइनस बेसिकली, ठीक है। एनीवेज द पॉइंट, द आइडिया इज द फॉलोइंग, यहाँ पे तुम देखो तुम्हारे पास दो करंट मिल रहा है, I1 I2 I3 मिल रहा है, तीन करंट सॉरी, I1 I2 I3 है। I1 और I3 का डायरेक्शन इज पॉजिटिव करंट। क्यों पॉजिटिव ले रहा, बिकॉज इफ यू पॉइंट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ I1 और I3, योर करंट, योर फिंगर गोज अराउंड इन एन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, देखो इन द सेम सर्कुलेशन। तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो मैं पॉजिटिव लूंगा, अगर वो क्लॉकवाइज आएगा तो मैं उसको नेगेटिव लूंगा। क्या, मेरे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो द करंट व्हिच प्रोड्यूसेस एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड इन फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, इस सामने से देखने से, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड वन दैट डज नॉट विल बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। तो बी डॉट डीएल का जो इंटीग्रल मैं करूंगा, मुझे यहाँ पे मिलने वाला म्यू नॉट आई एनक्लोज, बिकॉज सारे ऐड हो जाएंगे, इसका अपना ऐड होगा, इसका अपना ऐड होगा, इसका अपना ऐड होगा, बाहर वालों का ऐड नहीं होने वाला क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, बट हर एक का अपना अपना ऐड हो जाएगा। जब ये होगा तो यहाँ पे I4 I5 इग्नोर कर देंगे, I1 I2 I3 लेंगे क्योंकि वही लूप के अंदर है। अब when I take I1 I2 I3, I'll take the ones that are giving me anti-clockwise magnetic field as positive and the ones that are giving me clockwise field as negative, ठीक है। तो अगेन हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज विल बी टेकन एज नेगेटिव, दिस इज एनक्लोज्ड करंट, और इनका सम करोगे तो फिर मैं माइनस साइन के साथ इसको लूंगा, I2 को, I3 पॉजिटिव, I1 पॉजिटिव, तो I1 माइनस I2 प्लस I3, and that's your total I enclosed, है ना। So this is basically what this is going to be equal to sigma I in the example, ठीक है, with the sign। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं, चलो तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब एम्पीयर सर्कुलर लॉ का कहानी क्या रहा, ये रहा डेरिवेशन, ये तुम देखे हुए ऑलरेडी। सो दिस इज लाइक वेरीफाइंग कि जो प्रिंसिपल हमने शुरू किया था, क्या वो प्रिंसिपल हम रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं। इस लूप पे तुम्हारा b जो है वो कांस्टेंट रहेगा, dl तुम्हारा फिक्स्ड है, तो तुम्हारा ये क्या बन जाएगा इंटीग्रल 2 पाई r, तो b इंटू 2 पाई r बन गया, b इंटू 2 पाई r जो बना तुम्हारा ना, dl क्या बन गया तुम्हारा 2 पाई r बन गया, हाँ है ना, सही बात है क्या, b क्या बन गया तुम्हारा 2 पाई r बना, हाँ है ना, म्यू नॉट आई 2 पाई r, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r बन गया, हाँ है ना, हाँ है ना, सही बात है क्या, है ना। b इज व्हाट, म्यू नॉट, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, सही है। b कितना है तुम्हारा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, सही है। मजा है इसमें, कोई दिक्कत है, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए इसमें तुम्हें, ठीक है, इसमें तुम्हें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, ठीक है। कैसे आया वापस, वही सेम कहानी, राइट। यहाँ पे b कांस्टेंट रहने वाला है इस पूरे पे, क्यों, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस है, सिमेट्री है ना, b सेम फॉर द लूप, है ना, सेम for the loop due to symmetry, सेम फॉर द लूप ड्यू टू सिमेट्री, अगर ये सिमेट्री की वजह से सेम रहेगा पूरे लूप में, तो b डॉट डीएल तुम्हारा ये रहा, b इंटू 2 पाई r आ गया, अब ये म्यू नॉट आई आ गया, एंड यहाँ से तुम म्यू नॉट आई बेसिकली म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज, राइट। सो दिस इज द एम्पीयर सर्कुलर लॉ, सिंपल एलिगेंट, कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब अगला आता है तुम्हारा एम्पीयर सर्कुलर लॉ, बट फॉर अ सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर में यू नीड करंट डेंसिटी, एंड आई होप यू रिमेंबर व्हेन आई वाज डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, मैंने इसके बारे में बात भी की थी, मैंने बोला था कि मैग्नेटोस्टैटिक्स में दिस टॉपिक कम्स इन वेरी वेरी हैंडी। व्हाई डज इट कम वेरी वेरी हैंडी, इट कम्स इन वेरी वेरी हैंडी बिकॉज देखो तुम्हारे पास जो भी टोटल करंट है, यू डिवाइडेड बाय एरिया एंड यू गेट समथिंग कॉल्ड एज करंट डेंसिटी, राइट। यू गेट दैट, यू गेट करंट डेंसिटी, राइट, दैट इज जे, है ना, जे इज व्हाट, आई बाई ए, ओके, आई बाई ए। सो इफ j इज i बाई a, तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, r रेडियस का एक लूप मिल रहा होगा, r रेडियस का जो लूप मिल रहा होगा तुम्हें, उसमें से जो भी करंट जा रहा होगा डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर, मुझे ये मिल जाएगा, हाँ है ना। तो अब तक कहानी कुछ ऐसी है कि तुम्हारा अगर मैं r छोटा डिस्टेंस पे एक ऐसा लूप ले लूँ, r इन रेडियस पर, मैं ऐसा येलो ये व्हाइट वाला लूप ले लूँ, है ना, ये जो r है ये r in है, तो अगर मैं व्हाइट वाला लूप ले लूँ ऐसा, तो इसमें कितना एनक्लोज्ड करंट है, j इंटू उसका एरिया, सही बात है क्या, j इंटू एरिया उसका एनक्लोज्ड है, बहुत बढ़िया। तो मेरा I enclosed इज j पाई r इन स्क्वायर, ओके जी। अब this is I enclosed, this is I enclosed, है ना, this is I enclosed, multiply that by mu naught and this is going to give me b times 2 pi r n, है ना। the curl, इसको कर्ल बोलते हैं, राइट, इसको कर्ल बोलते हैं, राइट, इसको कर्ल बोलते हैं, राइट, इसको कर्ल बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं, इसको कर्ल बोलते हैं, राइट, b इंटू 2 पाई r को कर्ल बोलते हैं, ठीक है, b इंटू 2 पाई r को कर्ल बोलते हैं, मतलब नॉट दिस बट द इंटीग्रल, रादर द इंटीग्रल, दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड एज कर्ल, इसका नाम क्या है, कर्ल।
You will study this in a lot more detail eventually, है ना? You will study this in a lot more detail eventually. Anyways, so तुम्हें यहाँ से मिल गया. अब इसको solve कर दो, pi r n कट गया, and यहाँ से 2 denominator में आ गया. This is the formula. So this is the B within the thing, within the solid cylinder which is carrying some current. Okay जी. अब यहाँ पे आते हैं, मान लो तुम बाहर रेडियस में चले जाओगे तो तुम अब जो ले लो, राइट, तुम्हें यहाँ पे टोटल करंट जो मिलेगा वो कितना रहेगा, वो हमेशा यही रहेगा, राइट. कितना भी बड़ा रेडियस ले लो, क्योंकि r के बाद तो करंट है ही नहीं ना, तो j into pi r square is the total current, right? J into pi r square is the total current, है ना? J into pi r square is the total current, yes or no? If J into pi r square is the total current, तो I get this as my I naught. So what is B into 2 pi r naught? That is mu I naught. यहाँ से मेरे को वापस से solve करके same formula मिल जाएगा जो कि मुझे straight wire के लिए मिल गया था. तो for a bigger radius, this is as if like it's an infinite wire. तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता. The change only happens when you're within the wire. तब थोड़ा सा tricky हो जाता है, but again the principle is still the same. ठीक है, चलो अब ये सवाल है जहां पे मैंने तुम्हें दे रखा है कि तुम्हारे पास जो पूरा है, हाँ, ये सवाल में मैंने तुम्हें दे रखा है कि तुम्हारे पास है एक ऐसा बड़ा सा वायर जिसके लिए तुम्हारी करंट डेंसिटी क्या है, तुम्हारी करंट डेंसिटी ये आर है ना. यहाँ पे ये छोटा सा रीजन बनेगा, ये छोटा सा रीजन बनेगा, है ना. इसकी करंट डेंसिटी कितनी है ये मैं तुम्हें एग्जाम में नहीं मिलेगा तुम्हें, ये मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ. एग्जाम में तुम्हें ये नहीं गिवन होगा कि ये होता है करंट डेंसिटी का मतलब, ये जान लेना, एग्जाम में नहीं होगा ये. तो इसका डेंसिटी कितना होगा, जे एट अ डिस्टेंस आर क्या होगा, वो होगा ए, कितना लिया था मैंने, आई डोंट रिमेंबर, हाँ, तो ए आर प्लस बी. सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन. नाउ टू टेल मी कि क्या होगा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस विद इन एंड आउटसाइड. आउटसाइड का तो आई थिंक इट्स स्टैंडर्ड एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं. आउटसाइड वाले में देयर शुड एब्सोल्युटली बी नो प्रॉब्लम, राइट, बिकॉज आर आउटसाइड वाले में क्या होगा, 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 तुम्हारा पूरा का पूरा करंट आ जाएगा. कहीं पे तो मैंने लिखा था, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, भूल जाओ. आउटसाइड वाले के लिए तुम बाहर निकाल सकते हो, राइट. आउट के लिए क्या होगा, सो मान लो पूरा आई टोटल कितना हो जाएगा, आई टोटल रहेगा. अब देखो एक बात बताओ मुझे, व्हाट ये जे है तुम्हारा, यहाँ पे ये जे है, इसका डीए कितना होने वाला है, इसका डीए कितना होने वाला है, इसका डीए कितना होने वाला है. आई होप बाय नाउ यू रिमेंबर दिस एंड बाय नाउ यू रियलाइज दैट दिस इज गोइंग टू बी 2 पाई आर डी आर. पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशियल ले लो, नहीं तो सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस ले लो, राइट. 2 पाई आर इनटू डी आर ले लो. एनीवेज दिस इज योर डीए. सो व्हाट इज डी आई, जे डी है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2 पाई आर इंटू ए आर प्लस बी इंटू डी आर. और ये क्या बन गया तुम्हारा 2 पाई ए आर स्क्वायर डी आर प्लस 2 पाई बी आर डी आर. When I integrate this, I am going to get I naught is going to be this integral ना, I naught is going to be di का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू कैपिटल R. सो वो क्या दे देगा तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें दे देगा 2/3 पाई ए आर क्यूब प्लस पाई बी आर स्क्वायर. सो दिस इज द टोटल एनक्लोज्ड करंट. तो इसके बाद तो सिंपल आई नॉट है, तो आउटसाइड के लिए क्या होगा, बी आर आउट क्या हो जाएगा, बी एट आउटसाइड पॉइंट है ना, बी एट अ डिस्टेंस विच इज आर आउट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई आर नॉट. एंड आई नॉट इज कैलकुलेटेड ओवर हियर, आई नॉट is calculated over here. I naught is calculated over here. I naught is calculated over here. ठीक है, फाइन. अब तुम्हारा आर इन क्या है, अंदर वाले पॉइंट में क्या होगा, तो अंदर वाले पॉइंट के लिए मान लो मैंने व्हाइट वाला रेडियस ले लिया आर इन. अब मैं जाता हूँ और मैं इंटीग्रेट करके अंदर आई इनक्लोज निकालूंगा, बट आई विल बी इंटीग्रेटिंग ओनली फ्रॉम 0 टू आई आर इन. जो मैंने यहाँ पे पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दिया, एंड किसी भी आर आउट के लिए सेम ही रहने वाला, हाँ है ना, किसी भी आर आउट के लिए सेम ही रहने वाला, वो अब यहाँ पे नहीं होते हुए यहाँ पे सिर्फ आर इन तक इंटीग्रेट करूंगा. अब जब मैं सिर्फ आर इन तक इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 पाई ए आर इन होल क्यूब बाई 3 एंड बी पाई आर इन स्क्वायर. सही है, दिस इज योर आई एनक्लोज्ड. एंड आफ्टर यू हैव योर आई एनक्लोज्ड, आई थिंक द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, बिकॉज बी इंटू 2 पाई आर इन इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आई एनक्लोज्ड. अब आई इनक्लोज सब्स्टिट्यूट करो, आर इन और 2 पाई काटो, सारा काट पीट के तुम्हें मिलेगा ये आंसर. सिंपल है. इसमें मैं क्या मतलब, इसमें मेरे को आई डोंट थिंक कि कंप्यूटेशनली बहुत डिफिकल्ट है, बट आई थिंक कॉन्सेप्चुअली आई होप यू हैव द क्लैरिटी राइट नाउ कि कैसे डील करना है. आई होप यू नाउ नो कि इंटीग्रेशन कैसे लेना है, करंट डेंसिटी से तुमको एनक्लोज करंट कैसे निकालना है. आई होप वो तुम्हें समझ में आएगा. आई होप तुम्हें समझ में कि एम्पियर सर्कुलर लगाना कब है.
जब भी तुम्हें एक सिमेट्री मिले जहां पे तुम्हारा b कांस्टेंट बन जाए, जिस तरीके से गॉस लॉ कब लगाते हैं, जब मेरा e कांस्टेंट बन जाता है, क्योंकि तब मैं उसको इंटीग्रल से बाहर खींच के ला सकता हूं, आई सिंपली गेट द एरिया, राइट, टोटल सरफेस एरिया। सो वही यहाँ पे भी मैंने किया है। तो सेम कहानी है, कोई अंतर इसमें है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चलो तो आगे देखते हैं। अब आता है हमारा एक और एग्जांपल सेम एम्पियर सर्कुलर लॉ का। दिस इज आई थिंक द फोर्थ एग्जांपल, नहीं एम्पियर सर्कुलर लॉ का दूसरा एग्जांपल है ना। एम्पियर सर्कुलर लॉ का ये वाला पहला एग्जांपल था, एंड इसमें जो मैंने क्वेश्चंस किया है वो भी तुम्हें समझ में आ गया है ना। आई होप वो क्वेश्चंस भी तुम्हें समझ में आ गया। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल है ना, दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल है ना सॉलिड सिलेंडर का, है ना। मैंने सेम चीज तुम्हारे को इससे पहले 3 एग्जांपल्स दिखाए थे फॉर बायो-सवार्ट्स लॉ, वो तीनों एग्जांपल और उनके क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पे दे रखा हूं मैं, वो एक बार देख लेना। उसके बाद मैंने तुम्हें एम्पियर सर्कुलर लॉ में सॉलिड सिलेंडर का एग्जांपल दिखा दिया। नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग द सेकंड एग्जांपल इसी का, व्हिच इज अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड का आई थिंक आई मीन मेनी ऑफ यू वुड हैव सीन अ स्प्रिंग, राइट। स्प्रिंग में क्या होता है, और अ स्लिंगी तुमने देखा होगा, स्प्रिंग देखा होगा। तो स्प्रिंग या स्लिंगी में क्या होता है, यू कैन एक्चुअली सॉर्ट ऑफ, जो यहाँ पे मैंने फिगर बनाया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक तार है जो बहुत बार गोल 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 घुमा के मैंने इकट्ठा कर दिया, राइट। सो दिस इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ मेनी सर्कल्स पुट टुगेदर इनटू अ शेप लाइक अ सिलेंडर। यस और नो? हाँ है ना, सही बात है क्या? सही बात है क्या? यस और नो, सही बात है क्या? सॉरी मैं पानी पी रहा था। या सही बात है क्या? चलो एक, अगर मेरे को तुमको ढंग से और थोड़ा दिखाना तो लेट्स एज्यूम दिस वायर, मैं इस वायर को ऐसे रोल करूंगा इस तरीके से, ऐसा, समझ रहे हो, ऐसा। तो ये मेरा वायर जो रहेगा, ये मेरा एक सोलेनॉइड जैसा दिख रहा है। आई मीन दिस इज परफेक्ट, ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट सोलेनॉइड, बट आई होप यू गेट अ फील फॉर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो देयर इज गोइंग टू बी अ कॉइल लाइक दिस, उस कॉइल पे मैं तार लूंगा और उस तार को मैं इस तरीके से कॉइल कर दूंगा। सही है? मजा आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ है ना, समझ में आया? सो दिस इज व्हाट आई एम लाइक, दिस इज बेसिकली अ सोलेनॉइड, हाँ है ना। दिस इज व्हाट अ सोलेनॉइड इज, है ना। अब थोड़ा सा हिल गया बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा हिल गया कैमरा बट कोई बात नहीं, है ना। तो दिस इज व्हाट अ सोलेनॉइड इज, राइट, बिकॉज मैं कैमरा के रिमोट पे ही सोलेनॉइड बना रहा हूँ, है ना। सो दिस इज व्हाट अ सोलेनॉइड इज, राइट। आई होप तुम्हें ये दिख रहा है, हाँ ना, आई होप तुम्हें ये दिख रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट अ सोलेनॉइड इज, यस यस परफेक्ट, दिस इज व्हाट अ सोलेनॉइड इज। चलो बहुत बढ़िया। तो आई होप यू गेट अ सोलेनॉइड, यू गेट व्हाट अ सोलेनॉइड रियली इज। अब ये जो आइडिया है सोलेनॉइड का, इसमें फायदा क्या होता है? इसमें फायदा ये होता है कि मान लो, होगा क्या ना, होगा कि सोलेनॉइड को लगाने से होता है कि इन लूप्स को इकट्ठे चिपकाने से, लूप्स को इकट्ठे चिपकाने से क्या होता है, तो एक लूप की वजह से क्या होगा, मान लो एक तुम्हारा लूप है, इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी, बट एक कर्ल कर जाती है, ये ऐसे गोल घूम जाती है, ठीक है। इसको कैंसिल करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं अगर यहाँ पे दूसरा लगा दूं तो यहाँ पे भी ये बनेगा, यहाँ पे एक और लगा दूं, ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा। अब अगर मैं ऐसे लगातार इन्फिनिटली लॉन्ग लगा दूं तो मेरी वो कभी कर्ल कर ही नहीं पाएगी। समझ में मेरी बात? इट विल नेवर बी एबल टू कर्ल, राइट, क्योंकि अब सर्कल के प्लेन में तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सिंपल। सर्कल के प्लेन में तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। व्हाई? बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस नाइस प्रिंसिपल, जो कि क्या बताता है, जो कि ये बताता है, जो आई होप यू कुड सी दिस, राइट। मान लो तुम्हारे पास ये सर्कल है, एक मिनट, मान लो तुम्हारे पास ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, यहां से तुम इस पॉइंट पे आते हो और यहां से तुम्हारे ये लेते हो, तो दिस इज द डिस्टेंस था, दिस इज योर आर वेक्टर, राइट। एंड मैग्नेटिक फील्ड वाज व्हाट, डीएल क्रॉस आर, तो हमेशा वो आर के परपेंडिकुलर रहेगा, और आर तो हमेशा इस प्लेन में ही रहेगा ना, आर तो इसी प्लेन में रहेगा, सर्कल के प्लेन में रहेगा, तो क्लियरली इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू आर, राइट, इट हैज टू बी लाइक दिस। सो अगर वो परपेंडिकुलर है आर के, तो क्लियरली यू रियलाइज कि इन द प्लेन ऑफ द सर्कल हमेशा मेरी मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ओके। अगर मैं यहाँ पे दूसरा लूप लगा दूं तो फिर से वही हो रहा होगा, हाँ है ना, फिर एक और लगा दूंगा फिर से परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक और लगा दूंगा फिर से परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर मैं ऐसे इन्फिनिटली मनी लगा दूं तो कभी मेरी फील्ड कर्ल कर ही नहीं पाएगी, और अगर मेरी फील्ड लाइंस कभी कर्ल की ही नहीं तो कभी वो बाहर ही नहीं जाएंगी सोलेनॉइड से। सो दिस गिव्स यू अ वंडरफुल वे ऑफ एनक्लोजिंग योर मैग्नेटिक फील्ड विद इन द मैग्नेटिक फील्ड विद इन दिस रीजन। तो ये जो लूप है ना बाहर वाला, ये फाइनाइट सोलेनॉइड में आएगा। अगर मैं इसको इन्फिनिटली लंबा कर दूं तो कोई टर्न कर ही नहीं पाएगा। तो हम किस तरीके के सोलेनॉइड से काम करेंगे, सेम ट्रिक है ना। मैं इधर साइड से खड़ा होकर इसको ऐसे देख रहा हूं, ऐसे देखूंगा ऐसे देखूंगा, अगर मेरे को यहाँ पे ये दिख गया तो साउथ पोल है, वरना नॉर्थ पोल होगा। अगेन अ सिंपल आइडिया, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है, ओके। इफ द सोलेनॉइड इज इन्फिनिटली लार्ज, बी नेवर लीव्स द सोलेनॉइड, अगेन द सेम थिंग दैट आई जस्ट एक्सप्लेन, क्योंकि ऐड होता जाएगा और कभी निकलेगा ही नहीं। तो हम एक इन्फिनिटली लार्ज सोलेनॉइड से डील कर रहे हैं। हम किससे डील कर रहे हैं? एक इन्फिनिटली लार्ज सोलेनॉइड से डील कर रहे हैं, ऐसा। हम एक इन्फिनिटली लार्ज सोलेनॉइड से डील कर रहे हैं, हम एक इन्फिनिटली लार्ज सोलेनॉइड से डील कर रहे हैं, ऐसा, ठीक है। हम एक इन्फिनिटली लार्ज सोलेनॉइड से डील कर रहे हैं, बहुत बड़का सा है, मस्त सा सोलेनॉइड है, इससे हम डील कर रहे हैं, ठीक है। हम बहुत बड़े से सोलेनॉइड से डील कर रहे हैं, इन्फिनिटी लार्ज सोलेनॉइड से डील कर रहे हैं। तो इन्फिनिटी लार्ज सोलेनॉइड में तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी रहेंगी? वो तुम्हारी ऐसी रहेंगी, वो ऐसी रहेंगी, ठीक है, सारी की सारी पैरेलल रहेंगी, ओके जी।
तो अब आते हैं और आगे देखते हैं, और बाहर में कोई नहीं, यहाँ पे बी जीरो है, यहाँ पे भी बी जीरो है, क्योंकि कभी बाहर निकली ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस लूंगा। गॉसियन सरफेस कैसा लूंगा, इस तरीके का एक लूप ले लो। तो इसी डायग्राम में तुम्हें दिखाता हूं। आई वांट यू टू टेक द फॉलोइंग गॉसियन सरफेस, आई वांट यू टू टेक द फॉलोइंग गॉसियन सरफेस। ये वाला गॉसियन सरफेस लो। क्लियरली ये वाला जो लेंथ है तुम्हारा, है ना, क्लियरली ये वाला जो साइड है तुम्हारा, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये जो दो साइड्स है ये परपेंडिकुलर है, यस और नो? दे आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? है ना, दे आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? है ना, सही बात है क्या? दे आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? अगर दे आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड तो इससे होगा क्या? अगर दे आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड तो इससे होगा क्या? व्हेन यू टेक द डॉट प्रोडक्ट इन द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जब हम वो लूप पे बी डॉट डी लूंगा तो यहां से डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा मेरा, है ना। तो यही सेम चीज मैंने यहाँ बनाया। तो ये व्हाइट वाला शेप दिख रहा है, ऐसे स्क्वायर डब्बा जो बना हुआ है ना, इस स्क्वायर डब्बे में ये जो L3 और L2 है, इनकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है क्या? नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? देख सकते हो तुम, जीरो है, राइट, है ना। बी डॉट L2 इज इक्वल टू बी डॉट L3 इज इक्वल टू जीरो। व्हाई? बिकॉज एंगल इज 90 डिग्रीज। सही बात है। अब अगर ये वाला टर्म जीरो क्यों है? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बी इटसेल्फ है जीरो, है ना। ये जीरो क्योंकि बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है ना, बाहर तो फील्ड ही नहीं है, अंदर में फील्ड परपेंडिकुलर, तो ये तो गया, बहुत बढ़िया, बचा सिर्फ एक साइड। तो ये जो तुम्हारा पूरा इंटीग्रल है, इसके चार टर्म्स, तीन टर्म जीरो है, चार में से तीन टर्म जीरो, बचा सिर्फ बी डॉट डी एल। अच्छा, बी डॉट डी एल ऑब्वियसली कितना होगा? बी इंटू एल हो जाएगा, बिकॉज एक ही साइड है, राइट, बी इंटू एल हो जाएगा, ये सोनो, हाँ, बी इंटू एल हो गया, बिकॉज एक ही साइड है, बाकी तीन तो जीरो थे। तो बी इंटू एल इज इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट आई है ना। व्हाट इज आई एन? एन क्या है? नंबर ऑफ लूप्स। दिस इज व्हाट? नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ लूप्स, सर्कल्स जितने मैंने चिपका रखे हैं। ओके जी। अब अगर ऐसा है और मैं इस एल को ले आके इधर डिवाइड कर दूं, तो दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ या नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, एंड आई राइट दिस एज स्मॉल एन। तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर एन इनफिनिट सोलेनॉइड, म्यू नॉट एन आई। दिस इज फॉर एन इनफिनिट सोलेनॉइड। ठीक है, इनफिनिट सोलेनॉइड में कभी बाहर नहीं जा रही है, दैट इज व्हाई दिस वर्क्स, दैट इज व्हाई दिस सेंटर आर्गुमेंट वर्क्स। इसी वाई बाहर वाला तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे तुम्हारे परपेंडिकुलर हो जाएगा तो जीरो बन जाएगा, एंड दैट इज व्हाई दिस कर्ल इज बेसिकली वन साइड। वो वन साइड से तुम इक्वेट करोगे तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, सिंपल एंड एलिगेंट, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया सभी को? आई होप यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया ना। इफ यू वर टेकिंग होपिंग फॉर अ ब्रेक, और इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, आई थिंक यू शुड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, राइट। ऐसा रीजन क्या है? क्योंकि नाउ वी हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द चैप्टर, हमने आधा चैप्टर खत्म कर दिया। नाउ द सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर इज व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट यूनिट या इन द नेक्स्ट पार्ट। तो वो देखते हैं, है ना। वो क्या है तुम्हारा? दैट इज लॉरेंस फोर्स लॉ। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि मूविंग करंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बेसिक आइडिया है कि वो मैग्नेट पे फोर्स लगाएगी, सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, है ना। वो मैग्नेट पे फोर्स लगाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट पे फोर्स लगाएगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज पे फोर्स लगाती है, मैग्नेट पे फोर्स लगाएगी। यानी कि अगर मेरा मूविंग करंट जो है, करंट जो है वो क्या है? करंट इज बेसिकली मूविंग चार्जेस। मेरे मूविंग चार्जेस क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लगाते हैं। मेरे मूविंग चार्जेस क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लगाते हैं। अरे अरे अरे, इतना बड़ा इरेजर नहीं चाहिए था मेरे। ये क्या करते हैं? करंट पे फोर्स लगाते हैं, राइट, हाँ, चार्ज पे मैग्नेट पे फोर्स लगाते हैं, राइट, हाँ ना, सही बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दे आर गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स ऑन, दे आर गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स ऑन मैग्नेट्स। लेकिन तुमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है, मूविंग चार्जेस अप्लाइज ऑफ मूविंग चार्जेस अप्लाई अ फोर्स ऑन, अप्लाइज क्यों लिखा हूं मैं? अप्लाई अ फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस अप्लाई अ फोर्स ऑन मैग्नेट्स। ओके जी, यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताएगा? तीसरा सिद्धांत आपको यह बताएगा, न्यूटन थर्ड लॉ विल टेल यू दैट मैग्नेट अप्लाइज अ फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस। क्योंकि मूविंग चार्जेस अप्लाई अ फोर्स ऑन मैग्नेट, तो मैग्नेट अप्लाइज अ फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर बन रही है बिकॉज ऑफ, अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है बिकॉज ऑफ योर मूविंग चार्जेस, देन मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्जेस पे फोर्स भी लगना चाहिए, न्यूटन थर्ड लॉ, राइट। अगर ऐसा है तो ऑन अ मूविंग चार्ज टू फोर्सेस एक्ट। एक हो गई तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन द चार्ज इज नॉट रियली मूविंग, या रेस्ट पे कोई भी हमेशा लगेगी। सेकंड हो तुम्हारी मैग्नेटिक फोर्स, जो सिर्फ तब लगेगी जब चार्ज हो, जब वो स्पीड से चल रहा हो, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। सही बात है क्या? तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। मुझे ये नहीं पता कि वो फोर्स कितनी है, अभी तक मेरे को कोई एक्सप्लिसिट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा इसको डिराइव करना या डिफाइन करना। एक्चुअली हम इसको डिराइव नहीं, हम इसको डिफाइन करेंगे और उससे हमें चीजें मिलती हैं। क्या मैं वो तुम्हें सिखाने वाला हूँ ये कैसे आने वाला है ये लॉ तुम्हारा? ये जो फोर्स रहेगा मुझे नहीं पता कितना है, राइट। मैंने जैसे तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि मैंने तुम्हें आइडिया तो दिया था वाया द आर्गुमेंट ऑफ केपलर्स थ्योरम की, वाई इज योर GM1, वाई इज ग्रेविटेशनल फोर्स GM1 m2 by r square, राइट। यहाँ पे मैं तुमको वो नहीं दे रहा हूँ,
यहाँ पे मैं तुमको नहीं दे रहा हूँ कि वाई इज योर फोर्स गोइंग टू बी क्यू इनटू वी क्रॉस बी, जो कि आगे आ रहा है, मैं वो नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बस बता दूंगा, एंड आई एम टेलिंग यू इट्स फार मोर इंटीग्रेट एंड यू नो अमेजिंग देन इट लुक्स, ठीक है। चलो, तो आइडिया की लॉरेंस फोर्स, तो तुम्हें क्या पता था, मैग्नेट और मूविंग चार्ज की वजह, मैग्नेट की वजह से जो मूविंग चार्ज पे फोर्स लगेगी दैट इज गोइंग टू बी Q इंटू वी क्रॉस बी। अभी ये बहुत सिंपल से तीन क्वांटिटीज का रिलेशन है। पहला क्या है तुम्हारा, पहला सिंपल सा रिलेशन है किन किन के बीच में, पहला क्वांटिटी है तुम्हारे बॉडी पे चार्ज होना चाहिए, उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए, उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, ये तीनों प्रेजेंट होंगी तो ये नॉन जीरो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हें इस तरीके से एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। डायरेक्शन कैसे मिलेगा देख लो, तुम्हारा मान लो चार्ज ऐसे जा रहा है, बी अंदर की तरफ है, तो टेक द क्रॉस प्रोडक्ट, वी ऐसा रहेगा, वी इस तरीके से, बी अंदर की तरफ, फोर्स ऐसा आएगा, वी क्रॉस बी, ठीक है, वी अंदर, बी थंब, यानी कि बी ऐसा, यानी कि फोर्स ऐसा, ठीक है, फोर्स ऐसा, क्यू पॉजिटिव लेके चल रहा हूं मैं। एक और एग्जांपल देखते हैं अब। ओके, एग्जांपल लेने से पहले अच्छा कुछ इसका डायनामिक्स करते हैं, एग्जांपल शायद मैं बाद में लूंगा, एग्जांपल्स मैं शायद बाद में लिया हूँ, कहीं तो लिया हूँ एग्जांपल्स, हाँ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बाद में ले रखा है, तो हम आएंगे इस पे, पर पहले हम ये देखते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू मैथमेटिकल थिंग्स, है ना, जो कि तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है न्यूटोनियन डायनामिक्स में या रोटेशन वगैरह में, तुमने ये चीजें देखी हुई हैं। सो आई एम सिंपली गोइंग टू रिपीट देम एंड आई एम गोइंग टू होप कि तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है, आई एम गोइंग टू होप कि तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिल रहा है, तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है ई कितना है तुम्हारा, तुम्हारा ई कितना, ठीक है, तुम्हारा ई कितना है, एनर्जी कितना है तुम्हारा, ई सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं यार, एनर्जी क्यों है, ई वेक्टर एनर्जी कहां से हो गया, सॉरी, हाँ क्या बोलने मतलब, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना तुम्हारा, जीरो है। दिस इज द कंडीशन दैट आई एम गिविंग यू, आई एम टेलिंग यू कि योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट, बट आई एम आल्सो टेलिंग यू योर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन योर थिंग एज लाइक दिस इज हाउ इट डिपेंड्स, है ना, समझ में आया, दिस इज हाउ इट डिपेंड्स। तुम्हें मैंने बता रहा हूँ ये चीज इस पे ऐसे डिपेंड कर रही है, ये चीज ये रही तुम्हारी, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना, तो ये चीज तुम्हें वही तुम्हारा लॉ से मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब द कहानी इज दिस कि तुम्हारी फोर्स क्या वी को परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट है, राइट, क्रॉस प्रोडक्ट में वी हमेशा फोर्स जो रहेगा हमेशा वी को परपेंडिकुलर रहेगा। जब ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो पावर डिलीवर्ड क्या बन जाएगी, एफ डॉट वी, जो कि जीरो होनी चाहिए क्योंकि 90 डिग्री आ गया यहाँ पे एंगल, तो जीरो आ गई, राइट। तो व्हाट इज योर पावर डिलीवर्ड, योर पावर डिलीवर्ड इज बेसिकली जीरो, योर पावर डिलीवर्ड इज बेसिकली जीरो। अगर पावर डिलीवर्ड जीरो है तो यानी कि तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, है ना, बिकॉज पावर डिलीवर्ड इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज जीरो। अगर वो जीरो है तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो है, अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बन गई, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बन गई तो तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट बन गई, राइट। सो स्पीड डज नॉट चेंज बट द फोर्स इज स्टिल नॉन जीरो। Why, in what situation is force non-zero but speed constant? Circular motion, uniform circular motion in fact. Hence we have uniform circular motion. Force is non-zero, speed is constant, and therefore the path is a circular path. तो गोल घूमेगा वो, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है, सही बात है, क्या मजा आया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए तुम्हें इसमें, ठीक है। तो v इज परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हम दो तरीके देखेंगे, तो मान लो v, मुझे नहीं पता v क्या है एग्जैक्टली, राइट, वेलोसिटी और मेरे मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग ओरिएंटेशंस पॉसिबल है, क्या वो हमेशा पैरेलल होंगे, क्या वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, क्या उनके बीच में कोई एंगल पॉसिबल है, राइट, बहुत सारी चीज हो सकती है, तो हम हर एक चीज को एक एक करके देखेंगे। बेसिकली दो ही केस है, वैसे कायदे से तीन केस होने चाहिए ना, एक 1D केस होगा, एक 2D केस होगा, एक 3D केस होगा। बट जब तुम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो, राइट, जब तुम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो, व्हेन यू स्टडी योर प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसमें क्या होता है, जब तुम अपना प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, एक सेकंड रुक जाओ, फिर से पानी पीना है मेरे को। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, हैव यू एवर स्टडीड प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D सॉरी 3D? आई डोंट थिंक सो, राइट, यू डोंट। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें हमेशा दो ही वेक्टर से डील करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। मोशन इज गवर्न्ड बाय वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, राइट, है ना, दैट इज व्हाट गवर्न्स योर पाथ। अगर मेरा पाथ सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा तो क्या होगा, अगर मेरा पाथ सिर्फ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा तो मैं अपने प्लेन को देखो, मान लो हो सकता है मेरा वेलोसिटी ऐसा हो, इस तरीके से, ये 3D में क्योंकि एक्स एक्सिस से कुछ z से बना रहा है, x से बना रहा है और ये y से भी बना रहा है, राइट, आई मीन आई होप यू कैन गेट दिस, है ना, ये ऐसे भी बना रहा है एक एंगल, ऐसे भी एक एंगल बना रहा है और एक ऐसे भी एंगल बना रहा है, तीनों एंगल बना रहा है। लेकिन अगर मैं एक सही सा प्लेन पिक कर लूं, यानी कि अगर मैं डायगोनल प्लेन में चले जाऊं तो नहीं बना रहा, तो सिर्फ दो ही वेक्टर है, बेस और ये। तो द पॉइंट इज आई कैन ऑलवेज फाइंड वन प्लेन, ये मैथ्स में सिलेबस था, हुआ करता था, जहां पे फॉर एवरी 2 डायरेक्शन यू गेट अ प्लेन, राइट, ये होता था, एवरी 2 डायरेक्शन विल गिव यू अ प्लेन, ये होता था मैथ्स में। बट जब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस कट शॉर्ट हुआ है तब से ये पार्ट रिमूव हो गया सिलेबस से, तब से ये पार्ट सिलेबस से रिमूव हो चुका है ना, तो तब से प्लेन का जो आइडिया है हम वो
अब वो मतलब वो सिलेबस में नहीं रहा है तो तुमने शायद प्लेन नहीं पढ़ा होगा, बट 3D ज्योमेट्री जब तुम पढ़ते हो तो उसमें तुम प्लेन पढ़ते हो, ठीक है। जब तुम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हो तो उसमें तुम प्लेन्स के बारे में पढ़ते हो, एंड उस प्लेन्स में यही होता है कि 2 फैक्टर्स ऑलवेज गिव यू 1 प्लेन। तो जब भी तुम्हारा एंगल मान लो कुछ भी हो, हमेशा हम उसी प्लेन में आएंगे जिसमें वो दोनों लाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जब वी और वी परपेंडिकुलर है ना। तो इसमें क्या होगा, ये तो सबसे सीधा साधा केस है, वी और वी परपेंडिकुलर है, ओके। अगर वी और वी परपेंडिकुलर तो मान लो वी का, मान लो यहाँ पे डायरेक्शन ये रहा, वी ऐसे, वी ऐसा, वी कहाँ है, ये रहा वी, ये रहा वी तुम्हारा, ये वी ऐसा है, बी अंदर की तरफ है। तो देखो वी मैं बैठ रहा हूं क्योंकि मेरे को ये दिखाना हाथ है यहाँ पे, तो वी जो है ऐसे जाएगा, वी क्रॉस बी ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। मेनी पीपल थिंक दैट दिस इज सपोज्ड टू बी द सेंटर, ना जी, वो सर्कल पे लाई करने वाला है पाथ। समझ में आ रही है मेरी बात, मेरा पार्टिकल भी सेंटर पे जाता नहीं है। तो मेनी पीपल थिंक कि पार्टिकल का मोशन ऐसा रहेगा, नहीं कैसे होगा, पार्टिकल जब यहाँ पे है तो ये सर्कल कैसे हो सकता है, वो सेंटर कैसे हो सकता है, राइट। समझ में आ रही है मेरी बात। तो दिस इज योर वी, अगर ये वी है तुम्हारा तो ये वी से तुम्हारा बी ऐसा, तुम्हारी फोर्स ये रही। अगर ये तुम्हारी फोर्स है तो तुम्हारा पार्टिकल डायरेक्शन बदलेगा, पर वी हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा बी को, तो हमेशा ऐसी फोर्स लगती रहेगी, हमेशा फोर्स भी अपने आप चेंज होती रहेगी धीरे धीरे, एंड अल्टीमेटली द पार्टिकल एंड्स अप ऑन द सर्कल विद द सेम स्पीड एंड रेडियस आर। अब यहाँ पे तुम्हारा जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, दैट इज सिंपली क्यू वी बी, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी क्या होगा यहाँ पे, वी क्रॉस बी क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वी बी साइन 90 डिग्रीज, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है ना। तो दिस इज व्हाट वी बी, तो क्यू वी बी आ गया, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, एम वी स्क्वायर बाई आर, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो यहां से वी गया और एक और वी चला गया, तो कुल मिला के क्या मिला, क्यू बी इज इक्वल टू एम वी बाई आर। तो आर कितना आ गया, एम वी बाई क्यू बी, आर कितना आ गया, एम वी बाई क्यू बी। आर कितना आ गया, एम वी बाई क्यू बी, ठीक है। आर कितना आ गया, एम वी बाई क्यू बी, ठीक है। समझ में आया, एम वी बाई क्यू बी अगेन। सो इफ दिस इज योर आर, व्हाट इज योर टाइम पीरियड, योर टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी 2 पाई आर बाई वी। व्हाट इज योर टाइम पीरियड, योर टाइम पीरियड इज 2 पाई आर बटे वी। समझ में आया, यस और नो। व्हाट इज योर आर इज 2 पाई आर बाई वी, ठीक है। व्हाट इज योर आर, व्हाट इज योर टाइम पीरियड, योर टाइम पीरियड इज 2 पाई आर बाई वी, यस और नो, ठीक है। योर आर इज 2 पाई आर बाई वी, क्लियर है ये, सही है, यस और नो, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो, सही है, यस और नो। सो अगर ये तुम्हारा टाइम पीरियड है 2 पाई आर बाई वी, तो यहां से तुम्हें आर के बदले तुम डाल दोगे अपने आर का एक्सप्रेशन जो तुमने अभी पिछले स्लाइड पे डिराइव किया, जो कि कितना था, एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी। सो व्हाट इज 2 पाई आर, 2 पाई इंटू एम वी बाई क्यू बी डिवाइडेड बाई वी। वी और वी कटेगा तो फाइनली क्या मिल जाएगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी, हाँ है ना। वी और वी कटेगा तो फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी। बहुत बढ़िया, दिस इज टाइम पीरियड, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर और वी, दोनों हो कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज एंड द मास। सो टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन दिस, साइक्लोट्रॉन इज नो लॉन्गर इन द सिलेबस, सो आई हैव रिमूव्ड दैट। फाइनली तुम्हें यहाँ पे दूसरा क्या मिलने वाला है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 बाई टाइम पीरियड, है ना। अब वो कितना होगा 1 बाई टाइम पीरियड तुम्हारा, तो दैट इज गोइंग टू बी क्यू बी बाई 2 पाई एम। व्हाट इज योर एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन, तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी, सो दैट एंगुलर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड, एंड दैट इज बेसिकली 2 पाई इंटू ओमेगा, मल्टीप्लाई वगैरह करो, डिवाइड वगैरह करो, तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ से 2 पाई उधर लेके जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा क्यू बी बाई एम। तो तुम्हारे सारे क्वांटिटीज डिराइव हो गए इसमें, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं आगे बढ़ूंगा तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। अब आई एम गोइंग टू कंसिडर कि तुम्हारी वेलोसिटी जो है ना वो बी के साथ किसी एंगल थीटा पर है। तो यहाँ पे मैं एक स्लाइड ऐड करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो मान लो लेट अस से तुम्हारी बी ऐसी है, मान लो तुम्हारी बी ऐसी है, और यहां पे तुम्हारे पास एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी ये रही वी, और ये जो है ये थीटा एंगल है, ठीक है। ये जो है ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो तुम्हारा बी ऐसे रहा, ये वी एंगल जो है वो थीटा एंगल पर है, ओके जी। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अंडरस्टैंड दिस, राइट, अंडरस्टैंड दिस, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। मान लो मेरा वी बी ऐसे गया, आई वॉन्ट यू टू रियलाइज समथिंग, यहाँ पे लेट अस यूज सम प्रॉप्स ताकि तुम्हें क्लियरली दिख जाए। सो मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास ये वो है, कुछ तो मिले मुझे, वेट होल्ड ऑन, लेट मी फाइंड समथिंग जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। चलो तो लेट्स यूज दिस, नहीं, डज दिस हेल्प मी इन एनी वे, मे बी नॉट।
लेट मी यूज द मार्कर्स जो कि मेरे पास है. चलो तो मार्कर्स के थ्रू देखते हैं, मजा आएगा. इट इज वेरी सिंपल एंड एलिगेंट. ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसी है, तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड ये रही, ब्लैक कैप जो वो डायरेक्शन एरो है, ऐसी रही मैग्नेटिक फील्ड, तुम्हारा पार्टिकल ऐसे जा रहा है. अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है, तुम ध्यान से देखो, तुम्हें यहाँ पे सिर्फ कैसे दिख रहा है, तुम्हें यहाँ पे एक अंदर की तरफ एरो जाते हुए दिख रहा है ना, तुम्हें एक बड़ा सा एरो दिख रहा है या तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा है, हाँ है ना. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, राइट, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, कुछ नहीं दिख रहा. लेकिन अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो तुम्हें यहाँ पे दोनों एक ही प्लेन में इस तरीके से दिख रहे हैं, हाँ है ना, दोनों एक ही प्लेन में इस तरीके से दिख रहे हैं, राइट. तो ये जो मैं पूरा कहानी बना रहा हूँ, दिस लुक्स वेरी डिफरेंट इन डायग्राम टू दिस ओरिजिनल केस, राइट. यहाँ पे तो तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा है ना, ये ऐसा दिख रहा है, देखो तुम्हारे रेड वाला डायरेक्शन है वेलोसिटी का, ब्लैक वाला मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो बाहर की तरफ है, तो तुम्हें ये दिख रहा है, ध्यान से देखो, सही है क्या. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, राइट, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, यस. बट द थिंग इज कि ये वाला जो पूरा सिनेरियो है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउ यू आर डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग बट यू आर नाउ रोटेटिंग इट सिंपली लाइक दिस. ऐसा रोटेट कर दिया हूँ मैं, समझ रहे हो, आई हैव रोटेटेड इट लाइक दिस, दैट्स इट. तो तुम्हारा v जो ये 90 डिग्री हो तो ये ऐसा आ जाएगा, है ना. अगर ये v 90 डिग्री हो तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, v ऐसे आ जाएगा. अगर मान लो ये 90 डिग्री ना कि कुछ ऐसे रैंडम डायरेक्शन पे तो तुम इसको रोटेट करके तुम इसको इस प्लेन में देख लो, ऐसा है अगर कुछ, रोटेट इट एंड यू व्यू इट लाइक दिस. तो ये सेम ही फिगर है, यू आर जस्ट व्यूइंग दिस इन द प्लेन, यहाँ पे दोनों वेक्टर, तो तुम देख सकते हो, राइट, ऐसा 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 सेम ही है. तो मैं बस वही बोल रहा था कि कोई सा भी दो वेक्टर होगा हमेशा वो एक प्लेन में रहेगा, राइट, हमेशा एक प्लेन में रहेगा, राइट, बिकॉज इनके एंड्स को जोड़कर तुम्हें एक ट्रायंगल मिल जाएगा, ट्रायंगल हमेशा प्लेन में रहने वाला है, तो हमेशा एक प्लेन में रहेगा. तो ये जो पूरा कहानी है ना, ये जो पूरा कहानी है जहाँ पे थीटा एंगल पर है, इसका एक दो कंपोनेंट में मैं डिवाइड कर दूंगा. ये कंपोनेंट वाइट में बना रहा हूँ मैं, इसको मैं वाइट में बना रहा हूँ, है ना, वाइट में बना. तो ये कितना आ गया तुम्हारा v साइन थीटा, और ये कितना आ गया v कॉस थीटा. ये हो गया v साइन थीटा, ये हो गया v कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया v साइन थीटा, ये हो गया v कॉस थीटा, ठीक है, v साइन थीटा v कॉस थीटा. तो अब ये v कॉस थीटा v साइन थीटा है ना. तो अब हम यही एनालिसिस यहाँ पे करेंगे विथ v कॉस थीटा एंड v साइन थीटा, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस नाउ विथ v साइन थीटा एंड v कॉस थीटा, ठीक है. सो आई होप दिस द आइडिया मेड सेंस, the marker demonstration, I hope that made sense, है ना. तो I turn it around and when I turn it around, यहाँ पे v cos theta मिल गया, v sin theta मिल गया. I am calling this vt because this is the one that is sort of going to give you the tangential velocity. Tangential velocity is the velocity with which you are going around in a circle, है ना. तो तुम्हें यहाँ पे tangential velocity मिल गया, जैसे तुम गोल घूम रहे हो, तो clearly what is going to be your centripetal force. Centripetal force is given in terms of tangential velocity, so it is half mt vt square by r, and then vt is basically v sin theta. Put that in, solve all of that, and the radius will then become mvt by qb. So same idea, right, same exact same idea. And in fact this will again be, you know, this you can clearly see that, right, when you take the cross product you actually get qvb sin theta, right, and this v sin theta is essentially vt. So one of the vt's is cancelled by one of the vt's and the radius turns out to be mvt by qb, and that's your radius. And put the value of vt, you get mv sin theta divided by qb. This is the radius. Now time period is clearly going to be independent of the velocity, whatever is your tangential velocity, whether it's vt, v sin theta, v cos theta, v whatever, it doesn't matter. So this is the time period is going to remain the same. Now what is pitch? So देखो हो गया क्या, as you're moving, right, so there's going to be two motions. देखो जब when you look at this velocity का breakage, like sorry resolution, you realize कि दो चीज़ हो रही है यहाँ पे. एक चीज क्या है तुम्हारी, एक चीज है कि you know your v sin theta is going to make you move in a circle because of the perpendicular nature with the, like, its angle being 90 degrees with the b, and it rotates. Then this v cos theta, this v cos theta is basically going to get you to, like, this is basically going to get you move in the forward direction, right? And as this particle is moving in the forward direction, you are going to get a circle over here, then the next circle starts from here, right, and the circle will sort of be stretched out, so you get like a helical shape, right? The path is going to be a helical path, right? So essentially this circle and this translation combined will give you a motion like this, somewhat like, right? So this is a helical path, this is what we call as a helical path. Now for a helical path, this distance between two consecutive things is what we call as pitch. Okay, this is what pitch is. So if this is pitch, then you can clearly see that your pitch is v cos theta times t. Pitch is v cos theta times t, right? Pitch is v cos theta times t. 2 pi m by qb into v cos theta, that is your pitch. Okay? So you get the formula for pitch, you get the formula for pitch, you get the formula for radius, and the story is finished. Now we'll, okay, right? So basically the same standard results, you should know them, you should be able to use them in questions, right? Now, before I proceed with this, I would want to actually discuss,
some examples where you have to find the force. So I've drawn the forces, I've drawn the velocities and the magnetic field. Let's now verify this one by one. So you take your V like this, V is in this plane and you have to come to, I am not taking V like this because मेरे को B के लिए ऐसे घूमना है ना, तो ऐसे ले लूँगा तो ऐसे थोड़ी, ऐसे मेरा हाथ ऐसे थोड़ी घूमता है, right? It rotates like this. So I take my V like this and I rotate like this to B and I get my finger thumb pointing in F. So this is my this, right? Then यहाँ पे मेरा V जो है and Q is positive, यहाँ पे मेरा V ऐसे लूँगा, B के लिए ऐसे rotate किया तो मेरा thumb points into the plane, right? So that is my force. Okay, यहाँ पे मेरा Q positive है, my V is like this and I rotate towards B and my thumb is pointing like this, है ना, into the plane of paper. So that's my F. Over here my Q is negative, so V cross B का opposite होगा force. V ऐसा है, V से मैंने rotate किया तो मेरा thumb बाहर की तरफ आया, thumb मेरा बाहर की तरफ आया. Sorry, wait, sorry, my bad. Sorry, my bad. मैंने उल्टा देख लिया. I thought this was the direction of B. Sorry, हाँ. So V मेरा ऐसा है एंड ये V को मैंने ऐसे रोटेट किया तो मेरा थंब देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, मेरा थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट. बट मेरा वो V क्रॉस B है, मुझे क्या चाहिए, मुझे फोर्स चाहिए जो कि Q टाइम्स V क्रॉस B होगा. Q क्योंकि नेगेटिव है तो ये डायरेक्शन बदल जाएगा, तो मेरा फोर्स ऊपर नहीं नीचे लगेगा. अब यहाँ पे देखो V जाओ, V से तुम नीचे घूमोगे तो क्या मिलेगा, V से मैं अगर नीचे जाऊँ तो मुझे B जो B, हाँ मेरे को बाहर की तरफ मिल रहा है मेरा फील्ड, मेरा V क्रॉस B, सॉरी, और क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव होती है तो वो अंदर की तरफ चले जाएगा. सो दिस इज माई डायरेक्शन. सो दिस इज दिस इज सॉर्ट ऑफ हाउ यू डील विद इट in terms of the finger वाला पूरा कहानी. And what about the matrix? The matrix is basically this. This is how you deal with the matrix, है ना. मतलब अगर तुम्हें पता है V cross B का डायरेक्शन कैसे मिलता है, by taking the cross product, right? So when you take the cross product, this is what you will get. Yes or no? Does this make sense? When you take the cross product, this is what you will get. Correct? Correct. So I hope this makes sense. ठीक है. I J K V X B Y B Z B X B Y B Z, sorry, B X B Y B Z, and you're done. ठीक है. अरे येलो क्यों नहीं है, हाँ ठीक है, बी एक्स बी वाई बी जेड. सो आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस, है ना. अब ये वाला क्वेश्चन अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्यों ऐसा, क्यों इसमें ऐसा अलग किया है. सो यू आर गिवन अ स्ट्रेट वायर विच इज गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, है ना. करंट ऊपर की तरफ जा रहा है. आई गो अ डिस्टेंस ऑफ 2 meters फ्रॉम दिस लाइन to a point over here where I have a 1 microcoulomb charge traveling at this speed. So इस पे मेरे को फोर्स निकालना है. How do I get the force? तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले देखो मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी मालूम है मेरा चार्ज ऊपर जा रहा है. ड्यू टू दिस व्हाट इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड मेरी B होगी. B कितना होगी, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी, एंड वो कितनी होगी, दैट इज गोइंग टू बी दिस, राइट. आई मीन म्यू नॉट I by 2 pi d. हमने ये 1000 बार देख लिया. यहाँ पे सर्कुलर का एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल हो गया. तो यहाँ से 2 कट गया, यू एंड अप विद म्यू नॉट by 2 pi. म्यू नॉट by 4 pi का वैल्यू तुम्हें पता है, तो यहाँ से तुम्हें मालूम पड़ गया. हाँ, ऐसा यूनिट निकालने का मैंने होमवर्क तुम्हें जो शुरू में दिया था वही है ये, है ना. तो तुम्हें मिल गया ऐसा यूनिट्स में इसका वैल्यू. यहाँ से यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बाय 2 पाई बहुत इजीली, है ना. एंड देन जस्ट गेट दैट वैल्यू फॉर B. वंस यू हैव द वैल्यू फॉर B, यू ऑलरेडी हैव द वैल्यू फॉर Q, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम में यू नो द वैल्यू ऑफ V एंड यू नो द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्रीज, बिकॉज देखो तुम्हारा V ऐसे B ऐसे, B ऐसे V ऐसे, राइट. B और V ऐसे है, नहीं ऐसा, हाँ B और V ऐसा ऐसा ऐसा. तो क्लियरली वहां से तुम्हें 90 डिग्री मिल गया. एंड देन यू वर्क दिस आउट, यू गेट QVB. पुट द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ देम एंड सॉल्व एंड गेट द फाइनल आंसर. अगेन होमवर्क, ठीक है. तो अगेन ये मैं करा नहीं रहा, बट आई होप यू गेट द आइडिया ऑफ हाउ टू अप्रोच such a problem, right? I hope you get the idea of how to deal with such a problem, right? So this is a good problem which you should understand and which you should be able to deal with. Another problem, another good idea, another good question, है ना. ये क्वेश्चन वो टाइप के क्वेश्चन है तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है. तो देखो इसमें क्या है, मैंने तुम्हें यहाँ पे एक प्लेट लगाया जिसके ऊपर मैंने चार्ज दिया E कैपिटल Q और माइनस कैपिटल Q दूसरे प्लेट पे दे दिया. सो दिस इज लाइक अ कैपेसिटर, है ना. अभी जो कैपेसिटर प्लेट जैसा सिस्टम मैंने यहाँ पे बनाया है, इसके लिए बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जो कि है E मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना रहने वाला है, यू नो दिस, राइट. व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तुम्हें पता है कितना रहने वाला है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहने वाला तुम्हारा. तो अब क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द B so that the particle does not deflect, है ना. Particle does not deflect, right. So for this B we get a force opposite to QE, right. समझ में आ रही है मेरी बात. तो जो भी तुम्हें आइडिया क्या है, पार्टिकल डिफ्लेक्ट क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट होगा. सो द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सच दैट कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड से आने वाली फोर्स है वो इसको कैंसिल कर दे. समझ में आई मेरी बात, है ना. तो वो मुझे नहीं पता कैसे लगाने, तो वो मुझे अब सोचना पड़ेगा. आई विल ट्राई थिंग्स, राइट. आई विल ट्राई डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिगरेशंस एंड ओरिएंटेशंस एंड आई विल सी हाउ दिस वर्क्स, ठीक है. तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है. अगर मेरा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, मेरा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि मेरा डायरेक्शन ये रहेगा ऊपर. तो मुझे ऊपर चाहिए था, मेरा फोर्स ऊपर होना चाहिए, है ना. मेरा वेलोसिटी इधर है, तो क्लियरली मेरा B किधर होना चाहिए. यू कैन अंडरस्टैंड दैट मेरा B हैज टू बी इनसाइड लाइक दिस. सो इसीलिए मुझे पता चला मेरा ये फोर्स है, मेरा ये, क्योंकि फोर्स क्या है, ये ऑपोजिट ऑफ Q है, राइट. ये ऑपोजिट ऑफ Q है. मेरे को वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है, तो दिस शुड बी द B, राइट. दिस शुड बी द B, राइट. सो यस, दैट इज द B. सो दैट इज हाउ आई प्रेडिक्ट द डायरेक्शन, ठीक है. तो मुझे B का डायरेक्शन मेरे को मालूम पड़ गया अंदर होना चाहिए, बहुत बढ़िया. अब मेरे को E का वैल्यू कितना पता है क्या, मेरे को मालूम है E बेसिकली इसका एरिया मान लो A है, तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना.
यही होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई नो द वैल्यू ऑफ ई, मुझे अब पता है कि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी, मुझे पता है कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर लगनी है, मुझे पता अगर ये सारा सिनेरियो मीट हो जाए तो यहाँ पे क्यू वी बी शुड एक्चुअली बी इक्वल टू बी, यानी कि मुझे यहाँ से क्या मालूम पड़ेगा कि ई इज इक्वल टू वी बी, यानी कि मेरा बी कितना हो जाएगा ई बाई वी, और ई का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है जो कि क्या है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। सो इसका जो क्या बोलते हैं इसको, ये एरिया इसका है वो ए है, ठीक है। अगर इसका एरिया ए है तो तुम्हें मिल गया आंसर, एंड सिंपल एलिगेंट, कोई इसमें समस्या होनी नहीं चाहिए है, ठीक है। अब हमारा आता है फोर्स ऑन अ मूविंग कंडक्टर। अब मूविंग कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स कैसे मिलेगा, हाउ वुड यू गेट द फोर्स ऑन अ मूविंग कंडक्टर, है ना, हाउ वुड यू गेट अ फोर्स ऑन अ मूविंग कंडक्टर, राइट, हाउ वुड यू गेट अ फोर्स ऑन अ मूविंग कंडक्टर, राइट, हाउ वुड यू गेट अ फोर्स ऑन अ मूविंग कंडक्टर, है ना, हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो इसका आइडिया बहुत सिंपल सा है, इसका आइडिया बहुत सिंपल है, एंड अगेन वेरी एलिगेंट एंड वेरी क्लियर, राइट। क्या हो रहा है, तुम्हारे पास मान लो एक रैंडम सा कोई सा भी ऐसे तार रखा हुआ है, आई एम गोइंग टू गिव यू द फाइनल फॉर्मूला डायरेक्टली, है ना, एंड आई एम गोइंग टू आल्सो टेल यू व्हाई दैट फॉर्मूला इज एक्चुअली करेक्ट, ठीक है। तो तुमने यहाँ से गए, अब क्या करो, यहाँ से लेट्स ब्रेक दिस इनटू सेवरल कंपोनेंट्स लाइक दिस। तो एक ले लो ये वेक्टर, 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 एक ये लिख लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऐसे अलग अलग वेक्टर्स हैं। इसको मैं नाम दे रहा हूँ dr1 dl1, इसको दे देता हूँ dl2, इसको दे दे रहा हूँ dl3, ऐसे ही सबका नाम दे दिया। फाइनल वाले को मैं दे देता हूँ dln, और ये वेक्टर्स है, रिमेंबर दैट दीज आर वेक्टर्स, दीज आर डीएल वेक्टर्स टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट मेरा आई ऐसे जा रहा है, ओके मेरा करंट में अगर आई ऐसे जा तो मेरा आई करंट मेरा कितना होगा, ये बताओ मुझे, करंट मेरा क्या होगा, करंट मेरा क्या होगा, तो इसमें चार्ज कितना होगा, हाउ मच चार्ज विल बी प्रेजेंट इन दिस, हाउ मच चार्ज विल बी प्रेजेंट इन दिस, करंट इज डी क्यू बाई डी टी ना, है ना, यानी कि मेरा डी क्यू कितना हो जाएगा, मेरा डी क्यू हो जाएगा आई डी टी, येस और नो, मेरा डी क्यू हो जाएगा आई डी टी, येस और नो, करेक्ट है क्या। Okay, I think now if you think about this, I think you'll now realize something very interesting is happening over here, and what is that interesting thing जो कि यहाँ पे होने वाला है। तो the interesting that is going to happen is the following. The interesting thing that is going to happen is the following. क्या होगा वो interesting चीज़, तुम्हारा करंट इसमें फ्लो करा, मुझे निकालना है इसमें कितना होगा, तो अब सोच के देखो तुम्हारा कितना, लाइक सोच के तो यहाँ पे होगा क्या, the idea is how do you derive this, right, इसको हम कैसे derive करेंगे, क्या से मिलेगा फोर्स। तो इसमें मान लो अगर डी क्यू रीजन है तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या होगी, क्यू, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या होगी, क्यू इंटू डी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, एस और नो, यही होगी क्या, यही होगी क्या, हाँ है ना। बट व्हाट इज वी, डी क्यू, डी क्यू यहाँ से मेरा कितना है, डी क्यू इज आई इंटू डी टी इंटू वी क्रॉस बी, but this v is basically going to be what, this v is basically going to be the drift velocity, yes or no, हाँ है ना, this is basically going to be the drift velocity because that is the speed at which the electron is going to be moving on average, right, so vd, अब ये क्या बन जाएगा, dl दे देगा मुझे, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा i इंटू dl क्रॉस बी, है ना, आई इंटू डी एल क्रॉस बी। सो व्हाट इज दिस, दिस इज डी एफ, है ना, दिस इज छोटा फोर्स, है ना, दिस इज दैट छोटा फोर्स, राइट, डी एफ, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन डी एफ। सो कुल मिला के यहाँ से क्या बना, 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 कुल मिला के यहाँ से बना कि मेरा अगर एफ टोटल है तो वो क्या आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी डी एफ वन, है ना, प्लस डी एफ टू, राइट, एंड सेवरल डॉट 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 टिल यू फाइनली गेट dfn, finally you get dfn, right, does this make sense, फाइनली अब इससे में क्या आ जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा i इंटू डी एल वन क्रॉस बी प्लस आई इंटू डी एल टू क्रॉस बी प्लस आई इंटू डी एल थ्री क्रॉस बी डॉट 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 प्लस आई इंटू डी एल एन क्रॉस बी, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ से तुम्हारा f क्या आ गया, सो यहाँ से मैं i को कॉमन ले सकता हूँ, यस और नो, आई कैन टेक i कॉमन, है ना, मैं i को कॉमन लिया, अब मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा समेशन डी एल वन, और b को भी मैं बाहर ले लूंगा, तो आई राइट दिस एज समेशन डी एल आई फ्रॉम 1 to n, है ना, ये हो गया, टाइम्स b वेक्टर, है ना। सो दिस इज व्हाट आई हैव, राइट, व्हाट इज दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस क्वांटिटी, सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस क्वांटिटी रियली इज। लेट्स कम बैक ओवर हियर, यहाँ पे फॉलो द ग्रीनिंग, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये सभी का वेक्टर सम है, राइट। सो व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली अ वेक्टर सम, दिस इज अ वेक्टर सम ऑफ डीएल एन वेक्टर्स, है ना।
है ना, है ना, दिस इज अ वेक्टर सम ऑफ DLI वेक्टर्स, यस और नो, this is a vector sum of DLI vectors, yes or no, this is a vector sum of DLI vectors, yes or no. But what is this vector sum going to be? This vector sum is basically going to be this vector, this vector, this vector added to all of them, so ultimately this is simply going to be this vector. So you start at the beginning and you go to the end point in the direction of current and you draw this arrow. This is what the summation is, right? This is what, this is basically summation, vector sum essentially of DLI from I going from 1 to n. ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज समेशन DLI, तो ये जो DLI का समेशन है, ये जो DLI का समेशन है, ये जो DLI का समेशन है, ये मिल गया तुम्हें, यस और नो, करेक्ट है क्या, करेक्ट है क्या, यस और नो, यस और नो, करेक्ट है क्या, यस और नो, यस और नो, है ना? तो यही बेसिकली है ना, इसी को मैं, इसको मैं R वेक्टर लिख दूंगा। तो एसेंशियली मेरा फोर्स ऑन अ मूविंग कंडक्टर क्या होगा, फोर्स ऑन अ मूविंग कंडक्टर क्या होगा, मेरा एफ ऑन अ मूविंग कंडक्टर क्या होगा। तो मान लो मेरे पास, मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड बी ऐसे लगी हुई है, ठीक है, और तुम्हारे पास यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर रिंग है ऐसी, दिस इज अ सेमी सर्कल। तो इसमें कितना फोर्स लगेगा जिसका रेडियस मान लो R है, तो इस पे, और करंट ऐसे जा रहा है, इस पे फोर्स कितना लगेगा, बहुत सिंपल है, कैसे लगेगा, कैसे मालूम पड़ेगा, यू स्टार्ट ओवर हियर, you go from here and you go till this point, right, है ना, this is your R vector, है ना, which is basically what, 2R times x hat, ये हो गया तुम्हारा R vector, right। क्लियरली यहाँ से तुम ये सारा सॉल्व वगैरह कर लोगे तो तुम्हारी फोर्स कैसे लगेगी, देखो, तो तुम्हें DL क्रॉस R लेना, DL ऐसा गया है ना, R क्रॉस R बेसिकली, है ना, तो फोर्स क्या है तुम्हारी, फोर्स इज बेसिकली R, सॉरी, I into R क्रॉस N, सॉरी R क्रॉस B, I into R क्रॉस B, yes or no, I इंटू आर क्रॉस बी, हाँ ना, ऊपर की तरफ फोर्स आ गई बस, तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगी F, जिसका मैग्नीट्यूड F का कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी I इंटू 2R, है ना, R का मैग्नीट्यूड इंटू बी, I 2R बी, सिंपल। अगर मान लो मैं यहीं के बदले मैं ऐसा कुछ रैंडम सा शेप रख दूं और मैं यहाँ पे लाऊं और मैं बोल दूं ये डिस्टेंस जो तुम्हारा है ना, ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा, राइट, सो रैंडम व्हाटएवर शेप दिस इज, है ना, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना तुम्हारा, मान लो L है, तो तुम्हारा करंट अगर ऐसे I जा रहा है तो यू ऐड ऑल दीज वेक्टर्स अप एंड यू फाइनली गेट दिस एज योर R वेक्टर ना, दिस इज योर R वेक्टर व्हिच इज व्हाट, दिस इज L x hat, है ना, दिस इज योर R वेक्टर L x hat। अगर ये R वेक्टर है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे लगी हुई है ना, अगर ऐसे पे लगी हुई है तो व्हाट इज गोइंग टू बी द फोर्स ऑन दिस, द फोर्स ऑन दिस गोइंग टू बी व्हाट, इट्स गोइंग टू बी दिस, राइट, इट्स ऐसे इस पे फोर्स लगेगा और ये कितनी हो जाएगी फोर्स, दिस इज गोइंग टू बी ILB। So this Bill idea, BIL, force on a moving conductor in a magnetic field, right, BIL is what we are interested in, ठीक है, this Bill idea is what we are interested in, ठीक है, ये the idea of Bill, है ना, IBL या ILB, that is what we are interested in, ठीक है। I hope this makes sense to you, fine। Now we move on to the next topic, जहाँ पे मैं तुम्हें कैसे पैरेलल करंट कैरिंग वायर दे रहा हूँ, मैं दूसरा तुम्हें पैरेलल करंट कैरिंग वायर दे रहा हूँ। इसमें कितना करंट है मान लो I2 है, इसमें कितना करंट है मान लो I1 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है मान लो D। तो क्लियरली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी इसके वजह से, मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से कितनी बनेगी, B कितनी बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी म्यू नॉट I2 बाई, और डायरेक्शन क्या होगा अंदर की तरफ ना, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, है ना, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा म्यू नॉट I बाई 2πD। ठीक है, म्यू नॉट I2 बाई 2πD, म्यू नॉट I2 बाई 2πD, है ना, ओके। पर ये तो पूरे लाइन इधर पे भी, 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 हर जगह पे यही सेम भी है, राइट, हर जगह पे सेम भी है ना, हर जगह पे सेम भी है, क्योंकि ये तो इन्फिनिट वायर मैं मान के चल रहा हूँ, है ना, मैं तो इन्फिनिट वायर मान के चल रहा हूँ, ये सुनो, मैं यहाँ पे इन्फिनिट वायर मान के चल रहा हूँ, राइट, ये सुनो, मैं यहाँ पे इन्फिनिट वायर मान के चल रहा हूँ, राइट, इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सेम इधर पे हो रहा है। तो द पॉइंट इज कि ये पूरे कहानी में माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सेम चल रहा है। तो द पॉइंट इज कि अगर मान लो यहाँ पे मैं जाके इफ आई सिलेक्ट अ स्मॉल सेक्शन ओवर हियर, मान लो मैं इधर पे जाके एक छोटा सा सेक्शन ले लेता हूँ, है ना, जिसका लेंथ L है, तो इस सेक्शन पे लगने वाली फोर्स कितनी होगी, F, है ना, ऑन L क्या होगी, है ना, F ऑन L क्या होगी, तो दिस फोर्स ऑन L वाला लेंथ कितना होगा, तो देखो इसका I होगा, I2 होगा, अच्छा नहीं यहाँ पे भी I2 ले, लेट्स टेक दिस एज I1, लेट्स टेक दिस एज I1, ठीक है, I1 करंट ऊपर जा रहा है, I1 ऊपर जा रहा है ना, I1 ऊपर जा रहा है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन I1 ऊपर है, ऊपर जा रहा है करंट, I1 ऊपर जा रहा है, तो I1 ऊपर जा रहा है ना, तो देखो तो तुम्हारा L वेक्टर कैसे लोगे तुम अपना L वेक्टर कैसे लोगे, ये लेंथ अगर मान लो L है,
अगर ये लेंथ मान लो L ले, तो मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे L लेता तो मेरा यहाँ से वेक्टर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा L वेक्टर ऊपर, है ना। तो L क्रॉस B, है ना, L क्रॉस B अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, तो फोर्स किधर लगेगा, पीछे लगेगा, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा F, हाँ है ना। अब ये जो F फोर्स इस पे लगेगा, इसकी ऑपोजिट फोर्स इस पे लग रही होगी, हाँ है ना, इसकी ऑपोजिट फोर्स इस पे लगेगी, तो इस पे फोर्स ऐसा लगेगा। तो सेम डायरेक्शन का करंट जो होगा वो क्या करेगा, सेम डायरेक्शन का करंट जो होगा, सेम डायरेक्शन करंट्स अट्रैक्ट, है ना, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल, ऑपोजिट डायरेक्शन करंट्स रिपेल, ठीक है। सेम डायरेक्शन करंट अट्रैक्ट्स, ऑपोजिट डायरेक्शन करंट रिपेल्स, ठीक है, ठीक है। सेम डायरेक्शन करंट अट्रैक्ट्स, ऑपोजिट डायरेक्शन करंट रिपेल्स, ठीक है। सेम डायरेक्शन करंट अट्रैक्ट्स, ऑपोजिट डायरेक्शन करंट रिपेल्स। डज दिस मेक सेंस, आई होप इट डज, ठीक है, डज दिस मेक सेंस, आई होप इट डज, ठीक है। तो F L लेंथ पे लगने वाली फोर्स F जो है वो कितनी है तुम्हारी, इस L लेंथ पे लगने वाली फोर्स जो है वो कितनी है तुम्हारी, सो दैट टर्न्स आउट टू बी I2, है ना, इनटू L इनटू B, है ना, जो कि कितनी हो जाएगी तुम्हारी I2 इनटू म्यू, अरे यार ऐसे नहीं, हाँ तो इसको ऐसे लिखता हूँ, मैंने B को पहले लिखता हूँ, तो म्यू नॉट I1 आएगा, सॉरी यहाँ पे I1, हाँ I1 I2 बाई 2 पाई d टाइम्स L, दिस इज व्हाट यू विल हैव, दिस इज व्हाट योर FL इज। नाउ इफ दिस इज व्हाट योर FL इज, अगर तुम्हारा FL पार्ट पे लगने वाले लेंथ जो है वो ये है, विच इज म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d टाइम्स L, सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, FL बाई L कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d. So this is the force that acts on per unit length, right? So this is force on unit per unit length. ठीक है? Awesome. Awesome. So that is basically the discussion of what your magnetostatics का idea is. ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा, मैंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा फोर्स लगाती है, मैग्नेटिक फील्ड में मेरे पार्टिकल जो रहता है उसका मोशन क्या होता है, उसको मैं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से बैलेंस कर सकता हूँ, करंट का क्या लेना देना है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड का दूसरे करंट पे क्या लेना देना है, दिस वाज बेसिकली दिस डिस्कशन, राइट। सो आई होप ये सारे के सारे आइडिया जो हैं तुम्हें समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, राइट। आई होप ये सभी का सभी समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। सो या, सो दिस वाज द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू कवर. Again, the intention was to not keep a long lecture because the exams are closed now, so I do understand that तुम्हें time थोड़ा कम मिल रहा होगा. So about 1.5 hours का मैंने प्लान किया है, आने के सारे lectures भी similar time frame में करूँगा, मे बी विद एन एक्सेप्शन ऑफ रे ऑप्टिक्स, क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है ना. तो अगला लेक्चर EMI का होगा, जल्दी मिलेंगे उसमें, तब तक के लिए ये ट्राई करो रिवाइज करने का, मॉक टेस्ट लो, मॉक टेस्ट दो, डाउट हो तो पूछो, लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है करो. चलो बाय फिर, ठीक है, बाय.